दास शिकाय नाही काय मशीन कॅलिब्रेशन ना कॅलिब्रेट आता तू चलाय सपोर्ट कसं माहिती मग ते 4x म्हणजे सांग ना 10 म्हणजे आपल्या ओके तुम्ही म्हणायचं ओके आणि ऑर्डर म्हणजे एवढं डिस्टन्स बोललं मेजर करतोय ते काय होते काय पाहिजे तिथे मायक्रो संपला पार्ट नंबर संपला पूर्ण चालू केली चालू आवाज अजून त्यांच्या तिकडून स्टार्ट आवाज Right. So we'll start our today's session. So good afternoon, everyone. It's an honor to have Mr. Rishu Kumar with us today, who is the founder of Synox Security. His expertise in threat intelligence, cyber investigation, and IT governance. He also serves as a mentor and advisor to cybersecurity programs across institutions, including Gale and Indian Army. So on behalf of RSB team, I welcome you, sir. Over to you now. Yeah, thank you. So thank you for the introduction. So we will going to have a cybersecurity awareness session. So basically, this is the company profile, and we are merged with the NIC, CERTIN, and the Electronics and Information Technology Ministry. So basically, what is CERTIN? CERTIN is nothing but Cyber Emergency Response Team. So whenever there is any emergency in the country, so that basically we as a team, and we basically work together. So this is the overall for the company profile. And this is me. Basically, I'm the founder and CEO, and basically I provided a lot of cyber crime investigation and other things. And previously to that, I was been part of HCL and Deloitte and Aditya Birla Group. So this is all about us. And now we can focus on the cyber security awareness session. So Sir, yes, I'm so sorry to interrupt you in the middle. no It will be issues. better if you use Hindi and English both. So it will Yeah, be yeah, better sure, for everyone. Yeah, sure. thank you, sir. Thank you. So importance of awareness training. So why awareness is required, right? Because आज के डेट में हमारा जितना भी डिजिटल एसेट है, एसेट मीन्स आप जो मोबाइल, लैपटॉप, फोन या कुछ भी यूज कर रहे हो, राइट? दिस इज ऑल पार्ट ऑफ डिजिटल एसेट, है ना? तो जो भी आप डिजिटल एसेट आप यूज कर रहे हो, हाउ वी कैन सेव गार्ड दैट एसेट? इट मीन्स मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. जैसे आप जो भी फोन या लैपटॉप या कुछ भी यूज कर रहे हो, जब से आप यूज कर रहे हो उसमें उसका मेटा डेटा ट्रेसेस होते हैं, राइट? अगर आप कुछ यू बिलीव कि अगर आपने कुछ चीज देखा और उसको डिलीट कर दिया, राइट, और वो डिलीट हो गया, ऐसा नहीं होता है. सो एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट वी कैन फाइंड इट आउट ऑल दी डेटास, all the things whatever you have in your mobile, either you deleted or not, right? So it means technology alone you know can't protect you, right? We need to have a lot of साइबर सिक्योरिटी मेजर्स, या हमारे को पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या चीजें करनी है, काउंटर मेजर क्या क्या अप्लाई करना है, ताकि ये सारे डेटास अगर मैं एज अ एक्सपर्ट निकाल सकता हूं, तो एज अ इविल आई, एज अ हैकर, कोई उसको उस डेटा को भी आपका मिसयूज कर सकता है, राइट? सो दिस इज व्हाई वी नीड टू हैव द अवेयरनेस अबाउट द डिफरेंट डिफरेंट क्राइम. आज के डेट में कैसा कैसा साइबर क्राइम हो रहा है, इफ यू आर अवेयर, एंड अगर ऐसा कोई सिचुएशन है या इंडिकेटर ऑफ अटैक है, तो आप क्या
करोगे, you already have some sort of awareness and you know how to protect yourself, right? So that is why cyber security awareness training is very must for all of the users. And it's also important for your company as well. मान लो आप लोग RSV इंफ्रा में हो, इट्स अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, राइट? सो यहाँ पे बहुत सारे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होंगे, डिजाइन एंड अ लॉट ऑफ डेटास, राइट? एम्प्लॉयज के डेटा, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, राइट? सो कोई भी अटैकर क्या करेगा, आरएसबी के पास अपना सिक्योरिटी सिस्टम है, सारा चीज है, तो वो डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकता आरएसबी के इंफ्रा पे। वो क्या करेगा, एक यूजर की मशीन को पहले कॉम्प्रोमाइज करेगा। और वो कैसे करेगा, एक फिशिंग ईमेल आपको सेंड करेंगे या किसी भी तरीके से, एंड आप आरएसपी नेटवर्क का पार्ट हो, जैसे ही आप उस फिशिंग लिंक को क्लिक करोगे, मुझे आरएसबी इंफ्रा का एक्सेस मिल जाएगा आपके लैपटॉप या आपके डेस्कटॉप के थ्रू, right? And from there I will try to do whatever I want. So it means user is a top asset जिनको अवेयरनेस होना जरूरी है कि कैसे कौन सा अटैक होता है एंड कैसे मुझे इस अटैक से बचना है। इट्स वेरी सिंपल, राइट? सो दैट्स why cyber security awareness is must. And third thing, होम एंड वर्क। सो आप सबके ईमेल आईडीज होंगे या आप सबके बहुत सारे डिटेल्स होंगे जो आप अपने मोबाइल में रखते हो, लाइक यू डू व्हाट्सएप कम्युनिकेशन अबाउट आरएसबी एंड एवरीथिंग, राइट? तो आपका जो होम या वर्क नेटवर्क है वो भी सेफगार्ड होना चाहिए, वो भी सिक्योर होना चाहिए, सो दैट कंपनी का इंफॉर्मेशन और आपका भी इंफॉर्मेशन दोनों सेफ रहे एंड देयर इज नथिंग bad can be happen. So that's why cyber security is important. Now, so what are the security tips that we have to use basically? So first thing, three things we need to focus. One, the browsers that you are using. Second, the mobile devices that you are using. And the third thing, any IoT device, like you have your laptops, you have अभी आप लोग बहुत सारा Alexa यूज करते हो, या आपके जो भी कार आप यूज करते हो उसमें इंटरनेट इनसाइड है, राइट? स्मार्ट लाइट बल्ब है, राइट? बहुत सारे चीज हैं जो कि आप आईओटी यूज करते हो, लाइक स्मार्ट फ्रीज है। सो वेयर फ्रॉम दे आर गेटिंग द इंटेलिजेंस, राइट? लाइक आई कैन गिव यू वन एग्जांपल। आप प्लान करो कि जैसे मुझे कोई एक ट्रिप पे मुंबई जाना है या कहीं पे भी जाना है, आप देखोगे आपके मोबाइल पर आप इंस्टाग्राम यूज करो, फेसबुक यूज करो, सब जगह मुंबई से रिलेटेड होटल या बहुत सारे चीजें आने लगेंगे, फ्लाइट एंड एवरीथिंग। सो ये कैसे वर्क करता है? So it means somebody is sensing what you are, and whatever you are doing, ये सारा चीज कोई आपका पैटर्न को ट्रैक कर रहा है, राइट? बिकॉज ऑफ दैट ये सारे चीज आपके एप्लीकेबल होते हैं, राइट? तो इन सबको हम बोलते हैं एडवेयर्स, ठीक है? तो ये एडवेयर्स, स्पाईवेयर, हम इनको कैसे ब्लॉक कर सकते हैं, अपने ब्राउजर्स को, मोबाइल डिवाइस को, लैपटॉप्स को, ये हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं, ये सारा एग्जाम्पल्स हमें देखना है। ऑल्सो जब कोई एक साइबर सिक्योरिटी अटैक हो रहा है एंड यू फील समथिंग इज रॉन्ग, तो उसमें आपको क्या एक्शंस लेने हैं, राइट? ये सारा कुछ चीज है जिस पे हम फोकस करेंगे। सबसे पहले देखिए, इंटरनेट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो होता है थ्री मेजर सिक्योरिटी के। जो कोई भी वेबसाइट या कुछ भी आप इंटरनेट पे यूज कर रहे हो, वो आपको ये तीन चीज इंश्योर करता है: कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी। इसका मतलब क्या है? कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये है कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप लोग सब फेसबुक यूज करते हो, राइट? तो जो आपका फेसबुक का क्रेडेंशियल है या पासवर्ड है, ये कॉन्फिडेंशियलिटी फेसबुक दे रहा है कि आपका जो यूजर नेम एंड पासवर्ड है वो यूनिक है, और उसके बिना ये कोई और आपके अकाउंट में लॉगिन नहीं कर सकता, राइट? अब ये जो कॉन्फिडेंशियलिटी फेसबुक इंश्योर कर रहा है, यही सेम चीज इंटरनेट पे आप कुछ भी यूज कर रहे हो, आपका मेल आईडी, आपका कोई भी पर्टिकुलर वेबसाइट या कोई भी पर्टिकुलर साइट, राइट? फ्लिपकार्ट या किसी भी चीज को पकड़ लो, वो सब आपको कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर कर रहे हैं, राइट? सेकेंड थिंग, इंटीग्रिटी। इट मीन्स आपके कंसेंट के बिना आपका जो डेटा है, वो डेटा कोई भी इंटरनेट पर चेंज नहीं कर सकता। दैट इज व्हाट द इंटीग्रिटी इज ऑल अबाउट। एंड एट लास्ट, अवेलेबिलिटी। जो भी डेटा आप इंटरनेट पे रख रहे हो या उस साइट में रख रहे हो, आपको जब भी वो डेटा जरूरत पड़ेगा तो दैट डेटा इज अवेलेबल। सो दिस आर दी थ्री थिंग: कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, जो आपको इंश्योर कर रहे हैं। बट आपको ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा साइट सेफ है या सेफ नहीं है, राइट? ये भी हम देखेंगे। और जो साइट सेफ है
वो सारे साइट आपको ये तीनों चीज इंश्योर करते हैं एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, राइट? सो ये सारा इंफॉर्मेशन हमें देखना है कि हाउ वी कैन आइडेंटिफाई अ साइट विच इज अ ट्रस्टी और नॉट ट्रस्टी, राइट? सो बेसिकली लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी, तो जो ये पूरा साइबर सिक्योरिटी है या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, ये बेसिकली 5 लेयर में डिवाइडेड है, राइट? पहला है फिजिकल सिक्योरिटी, मींस आप कोई भी हार्डवेयर यूज कर रहे हो, राइट? उसकी सिक्योरिटी, इसका मतलब लैपटॉप, फोन या कुछ भी चीज आपको यूज कर रहे हो, उसको हम कैसे सिक्योर करेंगे। दूसरा, जो आपका नेटवर्क है, जिस भी नेटवर्क में आप अभी प्रेजेंट हो, उस नेटवर्क को हम कैसे सिक्योर करेंगे। तो बेसिकली ये जो नेटवर्क है, जब आप कंपनी में हो तो दैट इज अ आरएसवी की जो साइबर सिक्योरिटी टीम है या आईटी टीम है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये आपको सिक्योर करके देने की, राइट? इसमें यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। बट जो आपका होम नेटवर्क है, जब आप घर पे हो, उसका जो वाईफाई है या वहां पर जो भी नेटवर्क आप यूज कर रहे हो, राइट, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेफगार्ड इट, राइट? So that is what network security is, the second layer. Third is the system security. System security, it means आप जो भी सिस्टम यूज करते हो फॉर योर कम्युनिकेशन, फॉर योर ईमेल्स एंड एवरीथिंग, ये उसकी सिक्योरिटी हम उस पे देखेंगे कि हम उसको कैसे सिक्योर कर सकते हैं। एंड द फोर्थ थिंग इज द एप्लीकेशन सिक्योरिटी, मतलब जो भी आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, लाइक यू आर यूजिंग आउटलुक, यू आर यूजिंग फेसबुक, यू आर यूजिंग एनी सॉर्ट ऑफ एप्लीकेशन, तो वो एप्लीकेशन सिक्योरिटी हमें कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, राइट? एंड एट लास्ट, यूजर सिक्योरिटी। सो दैट इज व्हाई we are talking about this layer as of now, that is a user security, which is why the awareness training is very very much, because you are the last link. If you are not aware, ये सारे सिक्योरिटी होने के बावजूद भी, we can't do anything. If you are aware, or maybe for any company, if their user is aware, that is the top most cyber security layer, जिसको कोई भी ये नहीं कर सकता, मीन्स लाइक कोई भी अटैक नहीं कर सकता, इफ यू आर अवेयर। सो दैट इज व्हाई दिस 5 लेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फिजिकल सिक्योरिटी में आपका ये जो गार्ड्स एंड एवरीथिंग है, ये सारे चीज भी कवर होते हैं, बायोमेट्रिक्स एंड एवरीथिंग। सो दिस आर दी 5 लेयर्स जिस पे हम बेसिकली फोकस करेंगे। मूविंग फॉरवर्ड, तो सबसे पहले आपको कुछ कॉमन रिस्क जानने होंगे, राइट? कॉमन रिस्क अभी क्या क्या है? तो सबसे पहला जो कॉमन रिस्क है वो है मालवेयर। इसका मतलब ये जो मेरा मशीन है, इसको हम कैसे हैक कर सकते हैं? बहुत सिंपल है, मैं आपको एक मालवेयर क्रिएट करके दूंगा। जैसे ही आप वो फाइल अपने फोन में डालोगे या अपने किसी भी सिस्टम में डालोगे, आपका इंटायर सिस्टम का एक्सेस आई कैन टेक इट अप, राइट? सो अगर आप इंटरनेट पे देखोगे, तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, दैट्स दिस इज डोंट यूज फॉर योर पर्सनल गेन। सो दिस इज व्हाट, मोबाइल स्पाई, राइट? और यू कैन यूज फोन स्पाई, राइट? सो बेसिकली ये सारे क्या हैं? ये सारे जो फोन स्पाई टूल्स हैं, राइट, ये देखिए, तो ये जितना भी आपको दिख रहा है, ये सारे मोबाइल स्पाईवेयर, ठीक है? तो बेसिकली ये क्या करते हैं कि जैसे ही आप इसको यूज करोगे, राइट, आप किसी भी पर्सन के मोबाइल में आप इसको इंस्टॉल कर दो, एंड फ्रॉम देयर यू कैन सी इंटायर मोबाइल डिवाइसेस, उसका पूरा जो भी वहां पर डिटेल्स अवेलेबल होगा, व्हाट्सएप के कम्युनिकेशन, ये सारा चीज आप कर सकते हो, राइट? सो दैट इज व्हाई हाउ वी ऑल्सो नीड टू नो कि हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अगर हमारे मोबाइल में कोई ऐसा एप्लीकेशन डला हुआ है, सो हाउ वी कैन आइडेंटिफाई इट, राइट? क्योंकि मेरा जो डेटा है, एनी वन कैन सी दैट पर्टिकुलर डेटा, राइट? मेरा जो डेटा है वो एनी वन कैन लुक इन टू इट, राइट? सो दैट्स वाई मालवेयर इज वन ऑफ द डेंजरस वन, कि अगर मेरे मशीन पे या मेरे सिस्टम पे कोई मालवेयर की फाइल डाल दे, सो वी आर नॉट एबल टू सेफगार्ड आवर सेल्फ, राइट? इसीलिए पहला चीज है, हम अपना मोबाइल फोन हमेशा लॉक रखें जब भी हम यूज नहीं कर रहे किसी और पर्पस के लिए। सो मोबाइल फोन शुड बी लॉक, राइट? नेक्स्ट थिंग, अगर आप सिस्टम पे यूज कर रहे हो, तो मान लो आपका सिस्टम अनअटेंडेड है, आप लंच पे जा रहे हो या कहीं और जा रहे हो, राइट? प्लीज लॉक दैट पर्टिकुलर डिवाइस, सो दैट आपके एब्सेंस में वो सिस्टम को
कोई और यूज ना करे और उस पे कोई फाइल डिप्लॉय ना करे या कोई लिंक डिप्लॉय ना करे, राइट? सो दैट्स व्हाई मालवेयर इज वन ऑफ द कॉमन ट्रिक्स जिसके थ्रू हम मशीन्स को हैक करते हैं, ठीक है? सो सेम फॉर योर होम मशीन्स एज वेल। आपके घर में कोई कंप्यूटर होगा, मोबाइल होगा, उस पे भी हम ये सारा चीज एप्लीकेबल है, ठीक है? सेकेंड थिंग, फिशिंग अटैक्स। तो बेसिकली फिशिंग अटैक्स क्या होता है? यूआरएल, आपके मेल पर कोई यूआरएल आएगा जो कि बहुत लेजिटिमेट दिखेगा, या आपके व्हाट्सएप पे एक आपको लिंक आएगा जो कि फेसबुक का दिखेगा और समथिंग लाइक दैट, ठीक है, कोई न्यूज चैनल का। और वो आपको फोर्स करेगा कि आप उसमें अपना क्रेडेंशियल या पासवर्ड या कुछ भी चीज, जो भी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, ठीक है, वो सारा इंफॉर्मेशन आप वहां पर ये करो, एंड मैं प्रिटेंड करूंगा कि इट्स अर्जेंसी, ये बहुत अर्जेंट है, राइट? लाइक आपके कंपनी के ये से ईमेल आएगा आईटी टीम से कि आप अपना पासवर्ड चेंज कर दो, राइट? इमीडिएटली इस लिंक को क्लिक करो और अपना पासवर्ड चेंज कर दो। बट मैं वो क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे आपका करंट का पासवर्ड चाहिए। तो आप उसमें जाओगे तो वो पूछेगा कि आपका पुराना पासवर्ड क्या है। जैसे ही आप डालोगे और आपका नया पासवर्ड, वो क्या करेगा, आपका पुराना पासवर्ड का इंफॉर्मेशन मुझे दे देगा। दैट इज व्हाट द फिशिंग अटैक इज ऑल अबाउट, है ना? तो अगर कोई भी लिंक आपके पास है, ठीक है, या व्हाट्सएप पे या फिर आपके मेल पर या कैसे भी, तो आप उसको कैसे वेरीफाई करोगे कि वो एक फिशिंग है या एक नॉर्मल ईमेल है? इट्स वेरी सिंपल। तो आई विल गिव यू सम टिप्स एंड ट्रिक्स कि आप उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग, पासवर्ड्स। तो पासवर्ड में अभी हम लोग क्या करते हैं, या आप एटीएम पिन बोल लो या कोई भी चीज, हम एक ही तरह के पासवर्ड सब जगह रखते हैं और ऐसा पासवर्ड रखते हैं जो कि हमको इजीली याद रहे, राइट? बट दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम इज। अगर आपका पासवर्ड एक साइट पर हैक हो गया, लाइक आई कैन गिव यू वन एग्जांपल, लाइक हैव आई बीन पॉन, एक वेबसाइट है, आप इस पे जाओगे एंड अगर आपका कोई भी ईमेल आईडी है, जैसे कि मैं एक ईमेल आईडी डालता हूं, ठीक है, अगर ये ईमेल आईडी का पासवर्ड या कुछ भी चीज या इससे रिलेटेड कोई भी अकाउंट का पासवर्ड अगर हैक हुआ होगा, तो वो ये मुझे दिखा देगा, ठीक है? अब देखो ये कहाँ कहाँ हैक हुआ है, ठीक है? सो अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पर बिग बास्केट, ठीक है, तो ये बिग बास्केट में 2020 में डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, आईपी एड्रेस, नेम, पासवर्ड, फोन नंबर, फिजिकल एड्रेस, ये सारा क्या है कि ये अटैक हो गया है। तो अगर यहाँ पे देखो पासवर्ड, अगर जो मैंने बिग बास्केट में पासवर्ड रखा होगा, अगर वो पासवर्ड अभी भी मैं किसी दूसरे साइट में चला रहा हूँ, सो देन देर इज अ प्रॉब्लम। व्हाई? क्योंकि यहाँ पे ईमेल आईडी मिल गया और यहाँ पर पासवर्ड ऑलरेडी मेरा कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। तो ईमेल आईडी एंड पासवर्ड दोनों अटैकर को पता चल जाएगा और वो मेरा फेसबुक, ट्विटर या जो भी साइट है, इंस्टाग्राम, वो सारे पर उसको यूज कर सकता है, सेम डोमिनोज में, है ना? तो देखो ये सारा डिटेल्स वहां पर मेरा कॉम्प्रोमाइज है, परचेज मतलब मेरे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या जो भी इंफॉर्मेशन होंगे, राइट? लाइक रेंटो मोजो, सो पासवर्ड, फोन नंबर, परचेज, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स। तो देख रहे हो ये सारा इंफॉर्मेशन आज के डेट में अटैकर के पास है। सो द मोमेंट अगर ऐसा कुछ भी होता है, तो पहला चीज है हमारा पासवर्ड। ये पासवर्ड को हमको रेगुलरली क्या करना है, चेंज करते रहना है, राइट? इफ आई एम नॉट डूइंग द चेंज इन माय पासवर्ड, मतलब मैं हमेशा अटैक जोन में हूं, है ना? ये हमको समझना होगा। और हमारा जो पासवर्ड है हर एक साइट का अलग होना चाहिए, मतलब फेसबुक का अलग रखो, सोशल साइट्स का अलग रखो, और आपके जो कंपनी प्रोफाइल्स हैं उनका पासवर्ड अलग रखो, राइट? एंड हाउ यू कैन अंडरस्टूड कि आपका पासवर्ड क्या क्या है? तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, ऐसा नहीं कि उसको डायरी में लिख के रख लो या आप अपने लैपटॉप या डेस्क पे ही लिख के रख लो, नहीं, ये चीजें नहीं करना है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यू गाइस कैन यूज पासवर्ड वोल्ट, ठीक है? ये क्या होता है, पासवर्ड वॉल्ट होता है। आप इस पासवर्ड वॉल्ट को यूज कर सकते हो, जैसे मैनेज इंजन का है या जोहो का है या किसी का, गूगल का भी है, ठीक है? ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, गूगल पासवर्ड मैनेजर। तो आप ये सारे पासवर्ड्स को क्या कर सकते हो, यहाँ पर यूज कर सकते हो, सारे पासवर्ड्स यहाँ पर सेफगार्ड करके रख सकते हो विदाउट योर क्रेडेंशियल्स, योर इंफॉर्मेशन। ये सारा पासवर्ड कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता, ठीक है? तो ये सारा चीज आप यूज कर सकते हो। एंड
यहाँ पर पासवर्ड चेक का फंक्शनैलिटी भी है। गूगल पासवर्ड मैनेजर लिखोगे, क्या लिखोगे, गूगल पासवर्ड मैनेजर, तो आपको ये फंक्शनैलिटी दिखेगा और वहां पे सारे पासवर्ड्स आप सेव कर सकते हो। ये इसके पास एक फीचर है पासवर्ड चेकअप। तो जैसे ही आप ये करोगे वो सारे साइट्स आपको दिखा देगा जहां पर आपको पासवर्ड चेंज करने की जरूरत है ना। तो जो भी पासवर्ड आपका कॉम्प्रोमाइज हो गया हो या कोई अटैकर के पास है, ये सारा पासवर्ड का रिकमेंडेशन यहाँ पर आ जाएगा, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे करूंगा चेक पासवर्ड, सो ये मुझे सारा साइट दे देगा जहां पर भी मेरा क्रेडेंशियल कॉम्प्रोमाइज है और मुझे उसको चेंज करने की जरूरत है, और मैं यहीं से वो सारे पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ। इट दैट सिंपल। क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ पे? कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है? No, sir. ओके, थैंक यू। ठीक है। एंड एट लास्ट, अनसिक्योर नेटवर्क। सो ये बेसिकली क्या है कि जो लोग भी ट्रैवल करते हैं, ठीक है, अगर आपको जैसे किसी आप होटल में हो या कहीं पे भी हो, राइट, या फिर अपने घर के पास हो, अगर कोई वाईफाई ओपन है, मतलब फ्रीली अवेलेबल है, उस वाईफाई पे कभी कनेक्ट नहीं होना है। इट्स वेरी सिंपल। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप उस वाईफाई में कनेक्ट हो गए, वहां पे लगा रहता है स्निफिंग, ठीक है, टूल्स होते हैं, वायर शार्क और बहुत सारे। आपका हर एक ट्रांजेक्शन, जैसे आप उसके बाद मान लो अपना बैंक खोल रहे हो या फेसबुक खोल रहे हो या जो भी खोल रहे हो, तो उसका जो यूजर नेम, पासवर्ड या जो भी डिटेल्स आप टाइप कर रहे होगे, वो सारा उस नेटवर्क में अटैकर स्निफ करता है, मींस ट्रैक करता है। तो दैट इज व्हाई अनसिक्योर नेटवर्क्स पे हमको यूज नहीं करना है। जो भी आपका कंपनी प्रोवाइडेड नेटवर्क है, आपको वही नेटवर्क यूज करना है व्हेन यू आर इन कंपनी, ठीक है। एंड जब आप कंपनी में नहीं हो, तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि पब्लिक वाईफाई या किसी होटल का वाईफाई या कोई भी चीज हमको सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के लिए यूज नहीं करना है। मतलब आप बैंक एक्सेस कर रहे हो, राइट, डिसेबल द वाईफाई। उसके बाद आप जो भी नेटवर्क में हो, आपका जो फोन का नेटवर्क है, उसको इनेबल करो, और उसके थ्रू आप अपना जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसको एक्सेस करो। कोई भी वाईफाई के थ्रू आप उसको एक्सेस नहीं करो, क्योंकि वाईफाई कैन बी इजिली हैक्ड। बस एक टूल चाहिए, उसके थ्रू आपका वाईफाई का पासवर्ड हैक हो सकता है, एंड उस नेटवर्क पे कोई और भी बैठकर आपका पूरा ट्रांजेक्शन्स देख रहा होगा और आपको पता भी नहीं है, राइट। सो दैट्स व्हाई वी डोंट नीड टू यूज पब्लिक वाईफाई और एनी वाईफाई when we are exposing informational data and sensitive data, right? So that it is that simple. ठीक है। अब साइबर सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस, सो होम सिक्योरिटी के लिए या फिर ओवरऑल हमें क्या जरूरी है, राइट। सो बेसिकली सबसे पहला जो प्रैक्टिस है ना, कि लेजिटिमेट साइट पे ही अपने इंफॉर्मेशंस को शेयर करो। वेरी सिंपल। तो हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो देखो, इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, ठीक है। कोई भी साइट आप खोलो, आप सबसे ज्यादा साइट कौन सा ओपन करते हो? सबसे ज्यादा साइट आप क्या ओपन करते हो? कोई भी एक साइट बताओ जो आप बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हो। गूगल क्रोम में साइट फेसबुक फेसबुक, ओके, ठीक है, बहुत लोग अभी भी करते हैं। ठीक है, ठीक है। ये देखो, ये facebook.com है, राइट। सो जैसे ही आप, पहला चीज, आप कोई भी साइट यूज करोगे तो सबसे पहले यू हैव टू टाइप द साइट, राइट। facebook.com आप टाइप करो, कोई लिंक के थ्रू क्लिक करके मत जाओ। ये पहला एक थंबनेल है, ठीक है। दूसरा चीज, यहां पर देखो आपको क्या दिख रहा है, यहां पर आपको ऐसे इंफॉर्मेशन दिख रहा है, राइट, ये पर्टिकुलर पार्ट, ठीक है। अगर आप क्रोम से यूज करोगे तो ये कुछ आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। अगर आप मोजिला पे यूज करोगे तो ये आपको कोई लिंक या उस तरह से इंफॉर्मेशन दिखेगा। जैसे ये मोजिला है, तो अगर आप यहाँ पे यूज करोगे, कौन सा ब्राउजर यूज करते हो आप लोग? क्रोम क्रोम, क्रोम ठीक है, वेरी गुड। तो देखिए, एज अगर आप, हाँ, एज, ठीक है, वो भी देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे facebook.com है, ठीक है। तो सबसे पहला आपको ये जो डॉट है इसको क्लिक करना है, ठीक है। दूसरा, कनेक्शन इज सिक्योर, ये हमेशा दिखना चाहिए। अगर कनेक्शन इज इनसिक्योर दिख रहा है, इट मींस देयर इज अ प्रॉब्लम इन दैट साइट। उसके बाद आप, अगर कनेक्शन इनसिक्योर दिख रहा है, सिक्योर नहीं दिख रहा है, राइट, इसका मतलब आपको सबसे पहला काम करना है, ये यूआरएल चेक करना है कि ये यूआरएल सही है ना। दूसरा चीज, अगर कनेक्शन इनसिक्योर दिख रहा है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे
तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको एक सर्टिफिकेट दिखेगा, सर्टिफिकेट इज वैलिड। सर्टिफिकेट इज वैलिड अगर दिख रहा है तो इसका मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर सिक्योर या इनसिक्योर दोनों केस में मैं बता रहा हूं, अगर यहाँ इनसिक्योर भी देख रहा है, आपने यूआरएल चेक कर लिया, उसके बाद दूसरा चीज आप क्या करोगे, यहाँ पर क्लिक करोगे और आपको दिखेगा सर्टिफिकेट इज वैलिड। वैलिड है इसका मतलब ये जो सर्टिफिकेट है, ये देखो facebook.com, मतलब इन्होंने इंटरनेट पे जो रजिस्ट्री करके रखा है वो facebook.com पे ही है, और इनका यूआरएल भी facebook.com ही है। इसका मतलब देयर इज नो प्रॉब्लम एंड आई कैन शेयर माय ऑल द इंफॉर्मेशन इन दिस साइट, बिकॉज मैंने पहले ही बताया ये कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड एफेबिलिटी, ये तीनों चीज इंश्योर कर रहा है, राइट। राइट, सो लाइक दैट वी कैन ट्रैक कि कौन सा वेबसाइट सिक्योर है और कौन सा वेबसाइट सिक्योर नहीं है। ठीक है, आप वापस यहाँ कनेक्शन सिक्योर क्लिक करोगे, सर्टिफिकेट वैलिड दिखना चाहिए, फिर इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो यूआरएल है वही सेम इंफॉर्मेशन यहाँ पर भी इसके सर्टिफिकेट में भी आना चाहिए। ये बहुत सिंपल है। ठीक है, कोई इशू है इसमें? No, sir. कोई? ठीक है, परफेक्ट। So this is what we need to do that in how we can know that. After that, clicking on pop-ups और unknown links, तो आप बेसिकली क्या करते हो, आप देखते होगे कि जब भी आप कोई वेबसाइट खोल रहे हो उसमें बहुत सारा पॉपअप आ जाएगा या बहुत सारे दूसरे वेबसाइट खुल जाएंगे। यू सिंपली नीड टू डिसेबल दैट पर्टिकुलर पॉपअप एंड अननोन लिंक्स। तो आप उसको कैसे करोगे, तो यहाँ पर आप जैसे ही क्रोम में जाओगे, यू जस्ट नीड टू टाइप disable pop-ups in Google Chrome, राइट। आप जैसे ही इसको लिखोगे, यहाँ आपके पास गूगल हेल्प का एक ऑप्शन आ जाएगा एंड यू हैव टू डू द सेम थिंग। ठीक है ना, राइट। ये क्या बोल रहा है कि सेटिंग्स पे आप क्लिक करो, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी एंड पॉपअप एंड रीडायरेक्ट में जाके इसको आप ऑफ कर लो। ठीक है, जैसे ये आपका है, यहाँ पर आप जाओगे तो ये आपको सेटिंग दिखेगा, राइट। सेटिंग में आपको क्या करना है, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी यू हैव टू सर्च। ठीक है ना, privacy and security, and here you are able to see the site setting। ठीक है, आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, you can have a option कि आप यहाँ पर सेफ्टी चेक इनेबल कर सकते हो, और यहाँ से सारा चीज जो भी इनेबल्ड है, जैसे देखो लोकेशन, कैमरा, माइक्रोफोन, नोटिफिकेशन, ठीक है, ये सारा कुकी, इमेज, पॉपअप एंड रीडायरेक्ट, आप ये सारे को यहाँ पर सेटिंग कर सकते हो। ठीक है, डोंट अलाउ साइट एंड पॉपअप एंड यूज रीडायरेक्ट, सो आप सारा सेटिंग यहां से कर सकते हो। इट्स दैट सिंपल। मतलब जावा स्क्रिप्ट हमारा हमेशा, इसको आप क्या कर सकते हो, यू डोंट वांट तो डोंट अलाउ साइट टू यूज जावा स्क्रिप्ट, ये सारे आपको कंपनी के जो भी आपके एसेट्स हैं या पर्सनल फोन है उस पे आपको करके रखना होगा, राइट। एंड लेट सपोज दैट कैमरा, ठीक है, सो साइट्स कैन आस्क टू यूज योर कैमरा। अगर कोई भी साइट है जिसपे हम जा रहे हैं तो वो डायरेक्टली मेरा कैमरा यूज नहीं कर सकता है ना, दे नीड टू आस्क, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट कैन बी डन। अब देखो यहां पर आपको ये भी दिखेगा कि अलाउड कौन कौन से साइट में आपका कैमरा डायरेक्टली अलाउड है। अगर मैं इस साइट में डायरेक्टली जाऊंगा तो मेरा कैमरा डायरेक्टली यहां पर ओपन हो जाएगा। ठीक है, इफ यू वांट टू डिसेबल, यू जस्ट नीड टू डू व्हाट, यू जस्ट नीड टू क्लिक लाइक दिस। ठीक है, यू हैव टू डिसेबल इट, लाइक दैट यू कैन ट्रैक इट। ये समझ में आया कैसे करोगे आप सारा सेटिंग? ठीक है, और एक बार बताइए। ठीक है, आप गूगल क्रोम पे जाओगे, ये गूगल क्रोम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ प्लीज म्यूट योर सेल्फ, म्यूट कर लो आप अपने आप को। यहाँ पर जाओगे, देन देर इज अ सेटिंग्स, यू हैव टू गो टू द सेटिंग। यहाँ पर आप सेटिंग में जाकर यहाँ पर सर्च सेटिंग पे आप लिखोगे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, राइट। ठीक है, जैसे ही आप प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी लिखोगे, सो ये सारा ऑप्शंस आपके पास आएगा। पहला चीज है सिक्योरिटी, इस पे हम जाएंगे, और इस पे जाने के बाद हम यहाँ पर स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन हमारा क्लिक होना चाहिए। ठीक है, वेरी सिंपल, ये है सिक्योरिटी में आपको करना है। दूसरा, साइट सेटिंग पर जाकर
आपको परमिशंस चेक करने हैं कि कौन कौन से परमिशंस है, स्पेशली कैमरा के, लोकेशंस के, माइक्रोफोन के। ये तीनों आपको चेक करने हैं। अगर कोई भी ऐसा साइट है जो आपका लोकेशन ले रहा है, राइट, आप उसको वहां से डिसेबल कर सकते हो, ये आप कर सकते हो, राइट। दूसरा, जो हमको इसके बाद जो चेक करना है, हमको यहाँ पर पॉपअप्स एंड रीडायरेक्ट्स में जाने हैं। एंड डोंट अलाउ साइट टू सेंड पॉपअप और यूजर रीडायरेक्ट, ये हमको हमेशा क्लिक करना है, ठीक है ना। दिस इज दी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर जो हमको करना है, ठीक है, इसके लिए। और उसके बाद ये सारा चीज तो आपने ऑलरेडी देख लिया कि कैसे करना है। एंड देन अगर आपको कुछ भी होता है तो आप यहाँ पर कर सकते हो सेफ्टी चेक। देयर इज अ ऑप्शन कॉल्ड सेफ्टी चेक। जैसे ही आप जाओगे, ये आपको सब बता देगा कि आपके क्या क्या इश्यूज हैं, ठीक है। अब जैसे नो वीक और रीयूज पासवर्ड, तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे बता रहा है कॉम्प्रोमाइज पासवर्ड, ठीक है। सो चेक पासवर्ड फॉर वन साइट जस्ट नाउ, राइट। तो उसको क्या लग रहा है, एक पासवर्ड उसने चेक किया और ये बोल रहा है कि आपका पासवर्ड, एक पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज है, आप उसको चेंज कर लो, राइट। सो ये हम गूगल पासवर्ड मैनेजर सेम तरीके से जा सकते हैं। और जब आप उसको स्कैन करोगे, जो पहले मैंने बताया था पासवर्ड वोल्ट वाला, यहाँ है ना, ये वाला गूगल अकाउंट पे, राइट, पासवर्ड वोल्ट, राइट, गूगल पासवर्ड मैनेजर। तो यहाँ पे जाके जब मैं इसको स्कैन करूंगा तो मुझे ये सेम इंफॉर्मेशन दिख जाएगा कि मेरा एक पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज है और उसको मैं चेंज कर सकता हूँ इमीडिएटली। तो ये बेसिकली हमको ये चेकअप करना है। यही दो फीचर्स हैं जो हमको क्रोम में सेट सेफगार्ड करने हैं। क्लियर है? Yes. ठीक है। नेक्स्ट, आपके जितने भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, जो भी आपके सोशल मीडिया या जो भी आपके इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, उन सब पर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपका इनेबल होना चाहिए। जैसे कि आपका जीमेल है, तो जीमेल पे आपका टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ये इनेबल रहना चाहिए, क्योंकि पासवर्ड मैंने आपको जस्ट बताया कि पासवर्ड कैसे कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, राइट। आई हैव बीन पॉन साइट पे आप गए, आपको दिखा कि कितने सारे, क्योंकि देखो इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि जो भी कंपनीज आ रही है वो साइबर सिक्योरिटी पे फोकस नहीं करती, राइट। मान लो मैं एक यूजर हूं, मैंने इंफॉर्मेशन दे दिया मेरे क्रेडिट कार्ड का, मेरे फोन नंबर का, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि मेरा इंफॉर्मेशन सेफगार्ड रहेगा। बट इंडिया में जितनी भी कंपनीज है, जो भी ऑनलाइन आप देख रहे हो, ये सारे अपने बिजनेस पे फोकस मोर करते हैं, बिकॉज साइबर सिक्योरिटी में दे नीड टू इन्वेस्ट मोर मनी, है ना। सो दैट इज वाई यहाँ यूजर का जो भी डिटेल्स है, पासवर्ड है, या जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, वो इजिली कोई भी हैकर बाहर के या इसराइल के, रशिया के या यूएस के, वो इजिली कॉम्प्रोमाइज करते हैं, है ना। सो दैट इज वाई मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमारा इनेबल होना ही चाहिए। क्यों? अगर ये इनेबल नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम क्या है? सिंपल, आपका यूजर नेम और पासवर्ड किसी को मिल गया, वो आपका डायरेक्टली जीमेल पे लॉग इन कर सकता है, फेसबुक पे लॉग इन कर सकता है, राइट। तो इसी के लिए हमारा पासवर्ड के साथ साथ मल्टी फैक्टर भी होना चाहिए, जिसमें जब भी अगर कोई आपका जीमेल पे लॉग इन करेगा तो ऑटोमेटिकली एक कोड आपके फोन में आएगा या एक ओटीपी आपके फोन में आएगा। जब तक आप वो ओटीपी नहीं डालोगे, आपका साइट ओपन नहीं होगा। तो दिस इज व्हाट वी नीड टू डू, दैट मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमारा सब जगह इनेबल होना चाहिए। आप कैसे इसको इनेबल करोगे? बहुत सिंपल है। जिसपे भी आपको इनेबल करना है, आपको कुछ नहीं लिखना है, आप गूगल पे जाओ, लिखो MFA इन जीमेल, ठीक है। बहुत सिंपल, आप जाओगे तो ये आपको यहाँ पे बता देगा कि कैसे हमको करना है, राइट। सो दिस इज व्हाट सेटिंग प्राइवेसी, क्लिक सेटिंग, वन सेकेंड। देखिए, अब ये सेटिंग, एक मिनट ना। ओके, तो बेसिकली अब जैसे आप जैसे कहीं भी आप जाओगे, आप लिखोगे MFA इन, राइट, जीमेल, नोटिफिकेशन, राइट। तो आप इसमें जाओगे
एंड बेसिकली इट विल गाइड यू हाउ यू कैन डू दैट, ठीक है। सो आपको यहाँ पे गूगल अकाउंट, जैसे ही आप इस लिंक को क्लिक करोगे आपका गूगल अकाउंट ओपन हो जाएगा, एंड उसमें आपको सिंपल टर्न ऑन सर्टिफिकेशंस जो भी है आपको यहाँ पर ये यूज कर देना है। जो भी आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है आप डायरेक्टली यहाँ से क्या कर सकते हो, इनेबल कर सकते हो। इट्स दैट सिंपल, है ना। तो आप बेसिकली इसमें जाओगे, देन यू हैव टू गो टू द सिक्योरिटी, जो भी आपका यहाँ पर सिक्योरिटी है आप इस सिक्योरिटी में जाओगे, एंड उसके हिसाब से ये आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन, ठीक है। आप ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन यहाँ पे क्लिक करोगे एंड देन यू कैन डायरेक्टली सेटअप, ठीक है। तो आपका जो भी यहाँ पर फोन है या इसका पासवर्ड है लैपटॉप का, ये सारा पहले आपको इंटर करना पड़ेगा, तब जाकर ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल हो जाएगा। इट्स दैट सिंपल। सिमिलर वे से आप फेसबुक, इंस्टाग्राम सबका कर सकते हो। अगर नहीं सो देन यू आर इन अ हाई रिस्क, ठीक है। आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड 99% केसेस में ये हैक्ड होते हैं, और आप उस पर रिलाई नहीं कर सकते यूजर नेम एंड पासवर्ड पे। आपको उससे ऊपर चाहिए जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके डिवाइस में या आपको ही सिर्फ पता हो, राइट। सो दैट्स व्हाई दिस 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। Then I already told about the Wi-Fi. You don't have to use a public Wi-Fi, ठीक है। Firewall protection. So this is very important. Firewall protection आप कैसे इसको करोगे? तो जैसे ही आप यहाँ पर लिखोगे Windows Firewall, ठीक है, आप अपने मशीन में जाओगे और आपको लिखना है Windows Firewall, ठीक है। तो यहाँ पर Windows Defender Firewall आएगा। ये सारे मशीन्स में आपके ये फायरवॉल ऑन होने चाहिए। यहाँ देखो Windows Firewall इज ऑन। अगर ये ऑन नहीं है देन देर इज अ प्रॉब्लम। अगर इस मशीन में कोई भी अटैक करेगा तो ये आपको गाइड नहीं करेगा, ये आपको सेफगार्ड नहीं करेगा, ठीक है। अगर ये मान लो डिसेबल है तो आप इसको कैसे ऑन कर सकते हो, यहां से, ठीक है, ऑन, ठीक है। ऑन एंड ऑफ करके 2 फीचर है, आप इसको ऑन कर सकते हो, सिंपल, ठीक है। इज दैट सिंपल। तो आपको क्या करना है, मेक श्योर करना है आपका जो फायरवॉल है वो सारा फायरवॉल आपका इनेबल हो, ठीक है। तो फायरवॉल 2 लेयर पे होते हैं, एक आपका डिवाइस लेवल पे और एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, मतलब जो गेटवे है उस लेवल पे। तो वो गेटवे वाला फायरवॉल वो आरएसबी आपकी जो कंपनी है वो इंश्योर करके देगी, बट आपका जो डिवाइस का है वो आपको खुद इंश्योर करना होगा, ठीक है। फिर सॉफ्टवेयर एंड बैकअप एंड फाइल रेगुलरली, ये सारा चीज होना चाहिए। मतलब अगर आप अपने ब्राउजर में जाओगे तो यहाँ पर आपको अपडेट का हमेशा दिखाएगा, ठीक है। मेरा ब्राउजर हमेशा अपडेट है, सो देर इज नो प्रॉब्लम। बट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखाएगा कि आपका जो ये ब्राउजर है वो पर्टिकुलर ब्राउजर आपका अपडेटेड नहीं है। सो ऐसा कोई भी सिचुएशन है तो यू हैव टू अपडेट योर ब्राउजर इमीडिएटली। और उसमें हमको क्यों अपडेट करना है, व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑन दैट, कि अगर मेरा ब्राउजर हम अपडेट नहीं करते हैं तो गूगल क्रोम या व्हाट्सएप या कहीं पे भी कोई भी ऐप जो आप यूज कर रहे हो अगर आप उसको अपडेट नहीं करोगे तो देखो गूगल क्रोम लेटेस्ट अटैक, लेटेस्ट वल्नरेबिलिटीज आप देखोगे तो ये आपको सारा वल्नरेबिलिटीज दिखेगा। देखो 6 अप्रैल को, ठीक है, यहाँ पर सीवी 2025 समथिंग आया है, राइट। तो 6 अप्रैल को उसने आया, आज है 12 अप्रैल, ठीक है। तो अगर मैं अपना क्रोम ये नहीं अपडेट नहीं करता हूं तो इस कंपनी ने जो भी गूगल ने सिक्योरिटी भेजा होगा अपडेट के साथ इस अटैक के लिए, सीवी वाले अटैक के लिए, अब देखो ये क्या है, वल्नरेबिलिटी इज अ 0 डे अटैक। तो जहां पे भी 0 डे पढ़ोगे इसका मतलब ये बहुत सेंसिटिव है, और इसका कोई सॉल्यूशन या कोई फायरवॉल एंटीवायरस कोई भी इसको ब्लॉक नहीं कर सकता। अगर कोई अटैकर इसको यूज करेगा तो 100% आपका मशीन कॉम्प्रोमाइज होगा ही होगा। उस केस में हमारा एक ही सॉल्यूशन है कि 6 अप्रैल के बाद गूगल ने जो भी अपडेट भेजा होगा वो अपडेट हमको डाउनलोड करना है। तो इसका मतलब ये गूगल के लिए ही नहीं एप्लीकेबल है, सबके लिए। आप जितने भी फोन में आप ऐप यूज करते हो, आप जितने भी डिवाइस में यूज कर रहे हो, वो सारा चीज अपडेटेड होना चाहिए, स्पेशली योर ब्राउजर एंड ऑल ऑफ द मोबाइल एप्लीकेशन। ये दोनों चीज आपको हमेशा रेगुलरली अपडेट करना है, ठीक है। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन हियर? No, sir. ओके।
इन केस इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एंड यू फील कि आपके मशीन में कुछ समथिंग मेलिशियस है, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करोगे? तो उस केस में आपको क्या करना है, अपने आईटी प्रोफेशनल, जो भी आपके कंपनी के आईटी मेंबर्स होंगे, आप उनको रीच करो, या आप बाहर में कोई भी एक्सपर्ट अवेलेबल है तो आप उनको रीच करो और उनसे कंसल्ट करो, ठीक है, आपको जो भी इश्यूज लग रहे, एंड दे कैन गिव यू दी सम सॉल्यूशन। सो दिस आर दी थिंग्स दैट वी नीड टू अवेयर अबाउट इट, एंड हमको सारे सिक्योरिटी जो भी हम यूज कर रहे हैं उस पे जो भी रिस्क है उन सब के बारे में हमको अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम कैसे उसको सेफ गार्ड कर सकते हैं। इट्स दैट सिंपल। यही चीजें हमें करनी है टू सेफ गार्ड आवर सेल्फ। बस यही चेकलिस्ट हमको फॉलो करना है, ठीक है। नाउ जो साइबर सिक्योरिटी की जो चेकलिस्ट है कि क्या क्या चीजें जो है हमको हमेशा फॉलो करना है, पहला चीज है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। मतलब वी हैव टू यूज अ वेरी कॉम्प्लेक्स पासवर्ड जो कि सिर्फ और सिर्फ मुझे पता हो। नहीं, ऐसा नहीं कि आप उसमें अपना नाम या जैसे आपके जो भी फैमिली फ्रेंड्स हैं या जो भी फैमिली मेंबर है वो सारा डिटेल फेसबुक पे या इंस्टा या कहीं पे भी अवेलेबल है, राइट। लाइक जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है, अगर आप ऐसा कुछ डिटेल्स पासवर्ड में रख रहे हो तो वो 110% कॉम्प्रोमाइज होगा, ठीक है। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू यूज अल्फा नंबरिक, मीन्स आप एक स्मॉल डिजिट, एक कैपिटल डिजिट, या कोई पास फ्रेज यूज कर लो, या ऐसा कुछ जो कि सिर्फ आपको पता हो अलोंग विथ सम सॉर्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। सो आपको ये सारा चीज करना होगा और उसके हिसाब से आप अपना पासवर्ड सेव कर सकते हो। एंड सेम पासवर्ड सारे अकाउंट पे यूज नहीं करना है, अदरवाइज क्या होगा कि अगर एक अकाउंट मेरा कॉम्प्रोमाइज हुआ तो बाद बाकी भी सारा अकाउंट मेरा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। सो दैट इज व्हाई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी हैव टू फॉलो इट, ठीक है। दूसरा, आपके पास क्या होना चाहिए, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो मोबाइल में आपके पास एंटीवायरस होना चाहिए और आपके लैपटॉप में भी एंटीवायरस होना चाहिए। अभी आप कौन सा एंटीवायरस यूज करते हो अपने मशीन में? आपके मशीन में कोई एंटीवायरस है अभी? हाँ, मैक्सिमम ना सुशीला ठीक है, अगर मान लो नहीं है, सो देर इज अ विंडो मैकेफे है। हाँ, वेरी गुड। सो मैकेफे इज आवर एंटीवायरस, ये चीज हमारा इसमें है, तो आप मैकेफे को टाइप करके देखो और वो आपका हमेशा अपडेट होना चाहिए। तो दैट इज व्हाट यू कैन चेक कि आपका मैकेफे वो है या नहीं है, अपडेट है या नहीं। अगर अपडेट नहीं है तो उसको अपडेट कर लो, ठीक है। दिस इज व्हाट द एंटीवायरस इज। सेम चीज आपको अपने मोबाइल में भी यूज करनी है, अच्छा एक एंटीवायरस। सो सबसे अच्छा एंटीवायरस जो है वो है सिमेंटिक का। तो यू कैन यूज सिमेंटिक, है ना। यहाँ पर आप अपने मोबाइल में भी यूज कर सकते हो सिमेंटिक, राइट, फॉर मोबाइल। आप अपने मोबाइल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही करोगे तो आपको यहाँ पर सिमेंटिक एंड पॉइंट प्रोटेक्शन दिखेगा मोबाइल के लिए, राइट। तो अगर इसमें कोई भी मालवेयर है आप उसे स्कैन भी कर सकते हो, कोई भी मलिशियस ऐप है वो सारा यहाँ पर ये डिटेक्ट कर लेगा और उसको डिलीट भी कर देगा। तो आप सबके मोबाइल में ये चीज होना ही चाहिए। और कोई भी नेटवर्क है सस्पिशियस नेटवर्क, तो वो आपको पहले ही बता देगा कि ये नेटवर्क सस्पिशियस है और वो उसको डिसेबल भी कर देगा। यू आर नॉट गोइंग टू यूज दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन, ठीक है। सो सस्पिशियस ऐप जो नेटवर्क है ये भी आपको डिसेबल कर देगा। दैट इज व्हाई यू हैव टू यूज दिस एसईपी मोबाइल, ठीक है। आप ये यूज कर सकते हो। अगर आपको ये यूज नहीं करना है तो नॉटन आप ये भी यूज कर सकते हो, ठीक है। बट आप सबके मोबाइल में ये चीज होना ही चाहिए, ठीक है ना। ये जो भी है इसको आप छोड़ दो, ये आपका फ्री में अवेलेबल है, ठीक है, प्ले स्टोर में। सो दैट यू कैन यूज एंड इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ फीचर्स, ठीक है ना। या आप एक अपना अगर जैसे पर्सनल डिवाइस है, मान लो 4-5 आपके डिवाइस हैं, तो आप एक बंडल भी खरीद सकते हो जैसे सिमेंटिक, है ना, सूट। आप ये इंटरनेट पे जाके भी परचेस कर सकते हो या फिर फॉर 5 डिवाइस, ठीक है, आप ये भी परचेज यहाँ से कर सकते हो।
ठीक है, या मैनेज इंजन या कोई भी, यहाँ पे देखो आपका यहाँ पर दिख रहा है नॉट इन 360 1199 रुपीज, राइट, 499. सो लाइक दैट यू कैन परचेज एनीथिंग एंड यू कैन इंस्टॉल इन ऑल ऑफ योर डिवाइसेस, ऑल ऑफ योर मशीन. ठीक है, इट विल नॉट कॉस्ट यू मच, बट ये आपको सेफ गार्ड करेगा. जब भी कोई अटैक आपके मोबाइल में या डिवाइस में करेगा तो इट विल सेफ गार्ड यू. सो दैट्स वाई वी हैव टू यूज सम सॉर्ट ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. ठीक है, रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट ये मैंने ऑलरेडी बता दिया. एंड डेटा बैकअप, आपका जो डेटा है, मान लो कभी कोई डिसरप्शन या कोई अटैक हो जाता है, तो हमारा जो डेटा है वो डेटा हमारा हमेशा सिक्योर होना चाहिए. ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, तो डेटा बैकअप पे आप जाओगे. ठीक है ना, तो आप सेटिंग में जाओ और वहां से ये ऑप्शन होगा बैकअप का ऑप्शन. ठीक है, ये आपका सेटिंग है. यहाँ पर अगर आप सर्च करोगे बैकअप, ये आपके विंडोज मशीन पे, तो यू विल एबल टू सी बैकअप एंड सिंक योर सेटिंग, है ना. तो आप जाओगे, इट विल शोकेस यू बैकअप. ठीक है, इट्स नॉट ओपनिंग फॉर मी, मीन्स कंपनी से डिसेबल्ड है, बट आप लोग चेक कर सकते हो. ठीक है, बैकअप एंड सिंक. मोस्टली क्या होता है कि कंपनी इज टेकिंग केयर ऑफ दिस ऑल बैकअप एंड एवरीथिंग, बट आपके पर्सनल लैपटॉप्स में होंगे, तो वो पर्सनल लैपटॉप्स में आपको बैकअप जो है वो इनेबल करके रखना पड़ेगा. इट्स वेरी सिंपल. ठीक है, नाउ फिशिंग बेसिकली क्या होता है, राइट. सो फिशिंग के लिए बेसिकली आपको क्या करना है, कोई भी ऐसा अटेम्प्ट, जो भी, जैसे मैं आपको एक अटेम्प्ट दिखाता हूं, एक ईमेल पे आपको क्या आएगा, या फिर मोबाइल में या कहीं भी चीज पे आपको एक मेल आएगा कि प्लीज परफॉर्म दिस एक्टिविटी. ये सारे एक्टिविटी आप परफॉर्म करो. जैसे ही आप वो परफॉर्म करोगे, वहां पर वो लिंक जो है वो सस्पिशियस लिंक डिटेक्ट हो जाएगा, और वो आपको एक अटैक के और या एक फेक लॉगिन क्रेडेंशियल दिखाएगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम और समथिंग लाइक दैट, और उसके बाद आप उस पे अटैक हो जाओगे. तो इसको सेफगार्ड क्या करना है, कोई भी यूआरएल या कोई भी लिंक हमें दिखे, ठीक है, तो आप बेसिकली उस पे क्या करोगे, मैं 1 मिनट आपको शेयर करता हूँ ना, कोई भी यूआरएल आपको कैसे चेक करना है, राइट, अगर कुछ मुझे मिलता है तो. ओके, so there is a lot of mails that I receive, right. So यहाँ पर आप जब भी कहीं पे भी इसमें कोई भी लिंक होगा तो आपको कैसे पता चलेगा, देखो यहाँ पर आप जाओगे, जैसे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर लास्ट में देखना, यहाँ पर आपको कुछ दिखेगा लास्ट में. होवर जब करोगे, इस पर्टिकुलर किसी भी मेल को ओपन करो, एंड यू हैव टू होवर. ठीक है, होवर का मतलब है बस उसको क्लिक नहीं करना है, बस उसके ऊपर अपना माउस को रखना है. तो आपको एक यहाँ पर लिंक दिख रहा है, राइट. जैसे अगर मैं किसी को भी क्लिक कर रहा हूँ, ये देखो GTRN.io समथिंग लाइक दैट. हमको यहाँ राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक करोगे तो ओपन हो जाएगा, आप अटैक का पार्ट बन जाओगे, राइट. यहाँ पर कॉपी हाइपरलिंक, थर्ड ऑप्शन कॉपी हाइपरलिंक, क्या करना है, माउस को लेकर जाएंगे, कोई भी पर्टिकुलर लिंक या कुछ भी ऐसा आया, हम उसको क्लिक नहीं करेंगे, राइट क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक नहीं करना है. ठीक है, राइट क्लिक करेंगे, उसको ओपन करेंगे, थर्ड ऑप्शन कॉपी हाइपरलिंक, इस पे जाना है. उसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे एक साइट पे, वो है वायरस टोटल. क्या साइट है, वायरस टोटल. इस साइट पे हम जाना है, और इसके बाद जैसे ही हम इस साइट को क्लिक करेंगे, यू कैन स्कैन इट. ठीक है, जैसे सर्च में जाओगे या यूआरएल में जाओगे, यूआरएल है तो यूआरएल में जाएंगे, है ना, इसको इंटर करेंगे. ठीक है, तो वायरस टोटल क्या है, दुनिया के सारे एंटीवायरस का एक डेटाबेस है. ठीक है, 92 एंटीवायरस का एक डेटाबेस है. ठीक है, इसमें आपका मैकेफे भी होगा, सारा एंटीवायरस होगा. देखो ये जो लिंक अभी हमने डाउनलोड किया, क्या यहाँ पे ये करा, ये सारा चीज क्या है, सारे एंटीवायरस बोल रहे हैं इसको ये सेफ है, तो मैं इसको क्लिक कर सकता हूं. अब जाके मैं इस मेल पर जाकर इस लिंक को मैं क्या कर लूंगा, मैं ओपन कर लूंगा. आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. ठीक है, क्योंकि ये जो लिंक है ये सेफ है. ठीक है, सो यही
आपको पता चलेगा ये वायरस टोटल से। अब देखो जैसे मैंने उस लिंक को क्लिक किया तो क्या हुआ, जैसे मैं इस लिंक को क्लिक कर रहा हूं तो आपको देखो यहाँ पर एक फॉर्म खुल रहा है, राइट, इट्स आस्किंग माई इन्फॉर्मेशन। ठीक है, मैं ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अब दे सकता हूँ क्योंकि मुझे पता चल गया कि ये जो साइट है इसका जो जो भी इंफॉर्मेशन है, ये जो भी ले रहा है, ये सेफ है, देर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, राइट। सो दैट इज वॉट वी कैन डू दैट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पर्पस। ठीक है, ये ऐसा हमको करना है ना। क्लियर है कैसे आप चेक करोगे? उसी तरीके से आपके मेल पर कोई अटैचमेंट आता है या कोई भी जैसे अटैचमेंट है या कुछ भी चीज है, आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करो। मतलब अगर कोई अटैचमेंट आ रहा है तो हम डायरेक्टली उसको क्या नहीं करेंगे, हम उसको ये नहीं करेंगे, डबल क्लिक नहीं करेंगे। ठीक है ना। पीडीएफ है, वर्ड फाइल है, उसको छोड़ दो। उसके अलावा कोई भी दूसरा टाइप का अटैचमेंट है तो सबसे पहले मेल से उसको डाउनलोड करके अपने मशीन में रखो। चूज फाइल, यहाँ पर वायरस टोटल में जाइए, चूज फाइल पे जाइए, और कोई भी पर्टिकुलर जैसे जो भी इमेज है या जो भी चीजें आ रही हैं आपके मेल में, है ना, उसको डायरेक्टली डबल क्लिक नहीं करना है। ठीक है, पहले आप यहाँ पे अपलोड करो, यहाँ पर आप चेक करो। ठीक है, अगर ये मेलिशियस होगा तो ये आपको यहीं पे बता देगा कि भैया दिस इज अ मेलिशियस फाइल, यू डोंट हैव टू यूज इट। ठीक है, सो देखो यहाँ पर इस फाइल को मैंने एनालाइज करा, ये फाइल क्या है, क्लीन है, देर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। सो इफ देर इज नो प्रॉब्लम देन वी कैन यूज दिस पर्टिकुलर इमेज। मैं उसको क्लिक कर सकता हूं, मैं उसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकता हूं। क्लियर है, समझ में आया आप यस लोगों को? सर। ठीक है, तो कोई भी लिंक है, कोई भी पर्टिकुलर अटैचमेंट है, हमको यही तरीके से वेरीफाई करना है। अब मैं एक आपको फिशिंग दिखाता हूँ कि फिशिंग अटेम्प्ट कैसे होता है। 1 सेकेंड ना, अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप पूछो इन बिटवीन। Hello. यस यस, Yes, I just want to ask one question. See, राइट। now there are many sites where they ask you to log in and they give हम्म you an option you can continue with Google or हम्म, Facebook, right? राइट So या, if we use that to continue with Google, it takes our Google email, Gmail ID and password. So is it the यस इट right विल। way or it is to sign in that account? No, Which you is the see, correct? first thing, right? First thing that you need to verify that the the security, the certificate that this particular link or browser is having, it's accurate, ठीक है, and it's belong to that particular site only। जो भी आपको Okay. URL दिख रहा है and that certificate जो आपको दिख रहा है, ये both the things are matching, then you can go with your Google account and everything, because the moment you clicked, your Google account is now been accessed with that particular website, and जो भी आपका Google में डिटेल्स है, ठीक है, वो सारा डिटेल्स आपका वहां पर उस वेबसाइट में चल जाएगा। ठीक है, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट दिस इज नॉट अ सेफ वे। आप एक Google अकाउंट अपना खुद का बना लो, ठीक है, जो भी Hmm. आपका पर्सनल होगा वो आपको Right. यूज नहीं करना है, राइट। वाई? बिकॉज Okay. इन योर Google there is a Google Photos, ठीक है, Right. there is a lot of thing which is only belongs to you, right? Oh, The yes. moment you clicked, you are giving entire photo access to that particular site, and each and every details will be taken by that particular site। So आपका जो भी फोन में आप फोटो खींच रहे हो, राइट, क्लिक कर हाँ, रहे हो, गूगल ड्राइव उसमें ऑलरेडी है, राइट। right. तो हर उसमें एक सेव होता फोटो, हाँ, हर एक फोटो गूगल फोटोज पे सेव होगा। है। तो इसका मतलब वो सारा साइट को भी आप वो फोटोज दे रहे हो, राइट। Right. So that is what we don't need to do that। Okay. Thank you. Thank you। Any other question? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। सर कंटिन्यू करिए सर। Okay, okay, sure, no issues। ठीक है, ठीक है। So I hope my screen is visible to all of you। So see guys, this kind of email you will receive for phishing has a document for your review, right? The moment you will click it here, right, what will happen? It will navigate to you in a malicious page,
and all the malicious activity will be happening from here. That is what we don't need to do that. Simple. आप यहाँ पे क्या करोगे, माउस को लेके जाओगे, सेम अप्रोच, राइट क्लिक, राइट, एंड बेस्ड ऑन दैट आप उसको हाइपरलिंक को यूज करोगे एंड वायरस टोटल साइट पे जाके आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड कुछ ऐसे वेबसाइट्स भी हैं, ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, फेक ईमेल क्रिएटर, राइट, फेक emailer. So we don't need to use this all, but I'm just giving you some ideas. So how it can be done. So basically, see, there is a temp email, right? So what it will give it to you, it will give you some temporary email ID, ठीक है। इसको बेसिकली यूज करके ये क्या करते हैं, ये जो साइट है, ये जो ईमेल है, इसको यूज करके दे विल सेंड यू अ लॉट ऑफ ईमेल्स, एवरीथिंग, क्योंकि इसका क्या है, इसका कोई ट्रेस नहीं मिलेगा। ये जो ईमेल आईडी है, इस ईमेल आईडी से जब कोई मेल आ रहा है तो आपको उसका ट्रेस नहीं मिलेगा। तो ऐसा कोई भी अनरिकॉग्नाइज्ड ईमेल है, right, don't try to open it, leave it, because it will be going to use for this only purpose, right, इसका पर्पस यही सिंपल होगा। दूसरा, दिस इज वन टेक्निक, ठीक है, फेक ईमेलर जहां पे ये यूज होता है। दूसरा टेक्निक क्या है कि मैं किसी का भी ईमेल खुद से बना सकता हूं, ठीक है, जैसे कि ऋषु कुमार, मान लो मेरा कुछ एक आईडी होगा, ठीक है, rishu.kumar@sinoxglobal.com, ठीक है, मैं आपको एक लाइव अटैक करके दिखाता हूँ। sinoxglobal.com टू, मान लो मेरे जीमेल में, ठीक है, सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट फाइल रिक्वायर्ड, राइट। अब क्या होगा कि ये साइट से, अब मैंने क्या किया, rishu.kumar@sinoxglobal को मैंने स्पूफ कर लिया। तो आप सबका जो ईमेल आईडी है वो भी स्पूफ हो सकता है, ठीक है। उससे बचना क्या है, उसको कैसे चेक करना है, मैं वो भी बताता हूँ, ठीक है। टेक्स्ट कुछ भी लिख दो, हाय आई, प्लीज रिव्यू दिस डॉक्यूमेंट, रिव्यू दिस document and change your password, and change your password with this link। अब मैं एक फेक लिंक दे दूंगा, पासवर्ड विथ दिस लिंक। तो ये ईमेल कौन भेज रहा है, ये ईमेल मैं एक फेक साइट को यूज करके भेज रहा हूं, ठीक है। बट इट विल व्हाट हैपन, वन सेकेंड, ओके। सो अब मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं भेज सकता हूं, राइट, आई कैन सेंड इट टू यू। सो ईमेल सेंड सक्सेसफुली, राइट। अब ये ईमेल जैसे ही गया, ये मेरे जीमेल पर आपको ये ईमेल डायरेक्टली दिख जाएगा। इफ आई विल ओपन माय जीमेल, आपको दिखेगा कि ऋषु कुमार के आईडी से एक ईमेल आया हुआ है, एंड दिस इज हाउ एनी वन कैन अटैक इट। सो हमको क्या करना है, हमको थोड़ा सा एक स्टेप बैक जाना है, ठीक है। स्क्रीन हाँ, शेयर हट गया है, नहीं, दोबारा मैं शेयर मैं करके। अपना ईमेल खोल रहा हूँ, एक मिनट। ओके, नो इश्यूज। तो जैसे ही आप देखोगे, ये सारा आपको यहाँ पर ये सारा जो भी डिटेल्स है, ये सारा डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। जो भी फिशिंग से रिलेटेड जितना भी चीज है, ये सारा चीज आपको दिखेगा, राइट। सो बेसिकली हमको क्या करना है, इस पर्टिकुलर कंडीशंस पे वी हैव टू डू फ्यू थिंग्स, ठीक है। फिशिंग को वेरीफाई करने के लिए पहला चीज है, जो भी डोमेन है, जो डोमेन और देखो, दो चीज इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, अगर हम facebook.com को विजिट कर रहे हैं, राइट, वी आर विजिटिंग facebook.com। सो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, facebook.com हम विजिट कर रहे हैं, राइट। सो हमेशा आप ये चीज देखोगे कि नोटपैड के बाद
हमेशा facebook.com ही होना चाहिए। मतलब अगर हम नोट ये देखेंगे कि जैसे ये कोई साइट है, www के बाद हमेशा आपका क्या है, facebook.com, तो इट्स लेजिटिमेट वन, राइट, अगर ऐसा कुछ है। बट अगर इसके जगह ऐसा रहे www.abc.facebook.com, ठीक है, राइट, दिस इज नॉट रिलेटेड विद द फेसबुक। हमको एक स्टेप ये जाना है, बैक जाना है, और जो मैंने सेटिंग आपको बताया, जैसे आप जाओगे वो थ्री डॉट पे ब्राउजर पे क्लिक करोगे और इसका देखोगे कि इट्स अ वैलिड, सिक्योर और अनसिक्योर। सो दिस इज वन थिंग दैट वी नीड टू चेक। दूसरा, अगर ये कुछ ऐसा रहेगा www.face, इज इट रिलेटेड विद द फेसबुक, क्या ये फेसबुक है? नहीं सर। Right, it's a phishing one. Why? Because here it's look like very similar to Facebook, but it is not facebook.com, it's something else. तो ये क्या है, ऐसे करके अटैकर्स क्या करते हैं, they will try to do some manipulation with you, and based on that this kind of attack can be happen. Like यहाँ पर उन्होंने के डाल दिया, कहीं पे भी इज वेरी सिमिलर। आपको जो डोमेन होगा, they will pretend that it's very similar with the facebook.com, and they will force user to log in with this particular id. The moment you will do that, the entire thing will be hacked, right? So this is what we need to mindful। और देखो इसके लिए बहुत सारा फ्री साइट अवेलेबल है, जैसे जेट शैडो है, तो आप इस पे जाओगे, राइट, तो फिशिंग क्रिएटर, a lot of phishing creator site is available। so अगर आपको किसी पे भी जब भी आपको ऐसा ये आ रहा है, तो you have to verify the link, जो भी उसमें लिंक होगा, जो भी उस पे अटैचमेंट होगा, you have to verify those all links, right? so that is why we can do that, like here Facebook phishing pages, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारा phishing pages, ये देखिए, है ना, दिख रहा है, ये सारे जो है, ये आपको जब आप इसको ओपन करोगे तो ये आपको बहुत सिमिलर फेसबुक का यूजर नेम एंड पासवर्ड दिखेगा। सो वी डोंट नीड टू गो फॉर द कंटेंट, जो कंटेंट है हमको उस पे नहीं ध्यान देना है, हमको हमेशा यूआरएल को देखना है। अगर यूआरएल इज नॉट facebook.com, एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द facebook.com, सो वी डोंट नीड टू यूज दिस पर्टिकुलर साइट, ठीक है। और जैसे ही आप क्रेडेंशियल इंटर करोगे, ये आपको जबरदस्ती आपके फेसबुक पे लेकर जाएंगे, रीडायरेक्ट करेंगे, ठीक है, फेसबुक पे। तो वो भी आप चेक कर सकते हो, जैसे कि मान लो ये पर्टिकुलर एक साइट है, ठीक है। सो इसको आप क्या कर सकते हो, पहला चीज जो मैंने आपको बताया, हम क्या करेंगे, वायरस टोटल, हमेशा इसको चेक करेंगे। कोई भी साइट से अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन आ जाए, कोई भी लिंक आ जाए, सो फर्स्ट थिंग यू वेरीफाई विद द वायरस टोटल कि what this particular site is all about. So here we can go, you can verify, and if this site will showcase as malicious, ही malicious आ रहा है, right, malicious, and यहाँ पे clearly है it's a phishing one, so we don't need to use this site। अगर देखो एक और चीज देखो, ये सारे एंटीवायरस आपके पास होंगे, फिर भी आपको ये प्रोटेक्ट नहीं करेगा। वाई इट विल नॉट, बिकॉज इसका थ्रेट सिग्नेचर इनके पास नहीं है। एंड द मोमेंट इफ यू विल क्लिक इट, ठीक है, अगर आप इसको क्लिक करोगे, ठीक है, एक और वेबसाइट यहाँ पर देखो, इसने एक नया वेबसाइट बनाया securedirectsite.com, ठीक है, पुराना वाला वेबसाइट इसका पकड़ा गया, तो इसने एक नया वेबसाइट इसने और बनाया है। सो दैट इज ऑल्सो दिस साइट विल गेट गिव यू इंडिकेशन, ठीक है। दूसरा चीज, ये साइट जब आप ओपन कर रहे हो, कि जो ये इंटेंशन जो ये दिखा रहा है कि इट विल टेक मी सिक्योर्ड डायरेक्ट साइट डॉट कॉम, इसी साइट पर वो लेकर जाएगा, तो हम ये भी चेक कर सकते हैं रीडायरेक्ट चेकर। तो यहाँ पर ऑप्शन है रीडायरेक्ट चेकर, हम इसमें भी एक चीज देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं, ध्यान से देखना, ये हमने वेबसाइट डाला और इसको हम एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। सो एनालाइज, ठीक है, अब देखो, अगर साइट को हम जब ओपन कर रहे हैं और यहाँ पर ये 200 ओके आ रहा है, और ये दोनों चीज जो मैच कर रहा है, ठीक है, अगर 301 आ रहा है या कुछ और आ रहा है, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। बट जब भी 200 पे हमको देखना है, जो भी हम यहाँ पर कर रहे हैं, और अगर ये वही पर्टिकुलर साइट पर जा रहा है 200 ओके, मतलब हम जो इंटरनेट पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमको वही डेटा यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। सो दैट इज व्हाट अ गुड थिंग दैट वी नीड टू डू दैट। अगर सिक्योर डायरेक्ट साइट है, अगर ये हमको यही डेटा दिखाएगा, सो दैट इज ओके, आई कैन फॉलो इट। अदरवाइज इट इफ इट इज अ malicious, डोंट ट्राई टू यूज इट, यहीं पे आप उसको यूज नहीं कर सकते हो, सिंपल है।
मैलिशियस है, इसको यहीं डिस्कार्ड कर दो, उससे रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी आप परफॉर्म नहीं करो। यही सेम चीज आपको अटैचमेंट पे भी करनी है। जब आप कोई अटैचमेंट देखोगे, सो यू हैव टू डू द सिमिलर वे, है ना? ठीक है। अब वीक पासवर्ड जो है हमारा, ठीक है, उसमें हमको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, पहला चीज है लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी। जितना बड़ा पासवर्ड आपका होगा उतना ही वो हार्ड है क्रैक करने के लिए। ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे, आप घर पे आपका कौन सा वाईफाई लगाया है आपने, आप लोग कोई भी बता सकते हो, आप लोग कौन सा वाईफाई यूज करते हो? एयरटेल जियो फाइबर भी एयरटेल। किसी हाँ, ठीक है, मैं आपको अब एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो हम एयरटेल यूज करते हैं, ठीक है। सो एयरटेल, मेरा पब्लिक आईपी क्या है अभी देखो, मैं आपको एक एग्जांपल लाइव दिखा रहा हूँ, व्हाट इज माय पब्लिक आईपी। ठीक है, इंटरनेट पे देखोगे, सो आपको यहाँ पर पब्लिक आईपी आपका दिख जाएगा। ठीक है, ये मेरा अभी पब्लिक आईपी है, राइट, 122 समथिंग समथिंग लाइक दैट। ठीक है, किसी को भी अगर ये पब्लिक आईपी पता चलेगा, ठीक है, यहाँ पर ये जब पब्लिक आईपी ओपन करेगा, सो योर एयरटेल का जो वाईफाई का पेज है, जो भी एयरटेल का वाईफाई का आपका पेज है, दैट पेज विल बी गेट इट ओपन हियर। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, मैंने तो फायरवॉल लगा के रखा है, बट इट्स ओके, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, तो मान लो जैसे कि ये 1.1 पे मैंने ओपन करा, तो इट्स कमिंग एज अ होम गेटवे, जो भी मेरा यूजर नेम एंड पासवर्ड जो भी है यहाँ पर, सो इट्स कमिंग लाइक दैट, एयरटेल का जो भी मैं वाईफाई यूज कर रहा हूँ। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? देखो, ये यूजर नेम एंड पासवर्ड है, तो आपका जो वाईफाई का जो यूजर नेम एंड पासवर्ड है, हम उसको क्या नहीं करते, हम उसको चेंज नहीं करते। नो बडी इन द वर्ल्ड चेंज दैट। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस दे आर अवेयर। तो इसमें क्या करोगे कि इंटरनेट पे मैं जाऊंगा, एयरटेल, है ना, वाईफाई कॉमन यूजर नेम एंड पासवर्ड। ये जरूरी नहीं है कि एयरटेल का ही, है ना, किसी का भी, आपका किसी भी वेबसाइट या किसी भी चीज का ये पासवर्ड यहाँ पर अवेलेबल होगा। एंड उसका यहाँ पर देखो, जैसे ये पासवर्ड बोल रहा है कि क्या होता है, डिफॉल्ट पासवर्ड इज ऑफन पासवर्ड और एडमिन। ठीक है, यूजर नेम इज एडमिन होगा और पासवर्ड भी एडमिन होगा। तो अगर मैं एडमिन एडमिन डाल दूं मेरा एयरटेल पे, तो ये पब्लिक आईपी अगर मेरे पास है, तो सीधा मैं आपके वाईफाई कंट्रोलर के अंदर आ जाऊंगा और वहां से मैं कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकता हूं। ठीक है, उसी तरीके से यहां पर देखो, पासवर्ड चेकलिस्ट, वर्ड लिस्ट। ठीक है, इंटरनेट पे सारे कॉमन वर्ड लिस्ट अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम यूज करेंगे, ये देखिए, है ना, ये आपका सारा कॉमन जो भी है, देख रहे हो, ये सारा कॉमन वर्ड लिस्ट अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सारा 10 मिलियन जो भी पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, ठीक है, उससे भी ये सारा डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, 10 मिलियन यूजर का पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज है, राइट, लाइक दैट, ये सारा डिटेल्स अवेलेबल है। इसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट पर ब्रूट फोर्स अटैक हम इसको इनेबल कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। इज दैट सिंपल। ठीक है, तो यही चीज आपको क्या करना है कि डिफॉल्ट पासवर्ड, जो भी आपका डिफॉल्ट पहले से ही पासवर्ड जो सेट है, उसको हमेशा चेंज करना है। यू हैव टू चेंज दैट पर्टिकुलर पासवर्ड इमीडिएटली। ठीक है, दिस इज व्हाट। एंड पासवर्ड जितना लंबा है उतना ही वो सिक्योर है, क्योंकि उसको उतना ही टाइम लगेगा कॉम्प्रोमाइज करने में। ठीक है, क्योंकि जब हम पासवर्ड, जैसे आपका पासवर्ड 8 डिजिट का है, 9 डिजिट का है, तो वो पासवर्ड क्रैक हो सकता है इजिली, थोड़ा टाइम लगेगा, 5 6 10 घंटे लगेंगे, बट वो पासवर्ड क्रैक हो सकता है। बट अगर पासवर्ड जितना ही बड़ा है, क्रिटिकल है, मल्टीपल कॉम्प्लेक्सिटी है, वो सारा पासवर्ड इजिली कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, क्योंकि उसको वर्ड लिस्ट बनाने में हमको टाइम लगता है। जो भी अटैकर है, it will take some time for them, so that is why length and complexity is very important. So कैसे हम कॉम्प्लेक्सिटी डिसाइड करेंगे? आप इसमें क्या करो, जैसे कि वेरी सिंपल, मैं आपको एग्जांपल देता हूं जो कि मैं करता हूं। इंटरनेट से एक अपना फ्रेज निकाल लो या टॉप कोट, कोई भी एक कोटेशन निकाल लो। ठीक है, एंड हर कोटेशन का सेकंड डिजिट, हर एक वर्ड का आपने बना दिया कि हर एक वर्ड का मैं सेकंड डिजिट रखूंगा।
ठीक है, ये आपको ही लॉजिक पता है कि हर वर्ड का मैं सेकंड डिजिट लिख रहा हूं, और ये कोटेशन आप कहीं भी लिख के रखो, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, क्योंकि आपका जो लॉजिक है वो सिर्फ आपको पता है। ठीक है, आप उसके हिसाब से आपने क्या करा, आपने एक पासवर्ड बनाया। ठीक है, ठीक है, अब ये पासवर्ड क्या है, कैसा लग रहा है ये पासवर्ड आपको? दिस इज अ वन ऑफ द सेफेस्ट पासवर्ड। ठीक है, क्योंकि इसमें लो लेटर्स भी हैं, इसमें कैपिटल लेटर्स भी हैं। ठीक है, एंड दिस इज नॉट गिविंग यू एनी पैटर्न, इसमें कोई पैटर्न नहीं समझ में आ रहा, राइट? एंड इट इज हैविंग अ लॉट ऑफ स्पेशल कैरेक्टर्स, एंड एटलीस्ट जो भी चीज आप रखोगे एटलीस्ट आपको दो रखना है। स्पेशल कैरेक्टर्स आपको रखने हैं तो दो रखो, आपको डिजिट रखने हैं तो दो रखो, दो से ज्यादा ही आपको हर चीज रखने हैं, क्योंकि एक के लिए, एक स्पेशल कैरेक्टर के लिए मान लो मैंने बना लिया, ठीक है, वर्ड लिस्ट, बट दो स्पेशल कैरेक्टर के लिए बनाने में मुझे टाइम लगेगा, राइट? सो लाइक दैट आप कोटेशन, मान लो 5 कोटेशन आपने यूज कर लिया, और 5 कोटेशन के हिसाब से आप हर जगह वो चीज को सेव कर रहे हो। सिमिलर वे आपका एटीएम पिन, आपको जो एटीएम का पिन है वो सारे एटीएम का पिन सेम नहीं होना चाहिए, राइट? ये आपको ध्यान रखना है कि एटीएम का पिन इज नॉट सेम। ठीक है, एंड उसके बाद जब भी आप किसी एटीएम पे जा रहे हो, यू हैव टू मेक श्योर दैट देयर इज अ प्रॉपर कैमरा विच इज इनेबल्ड, एंड जो तो आपका वो मशीन है, टेलर मशीन है, जहां पे आप अपना कार्ड डाल रहे हो, यू कैन चेक वंस, अगर वो आपको लगता है कि लूज है या लूज फिटेड है, सो डोंट पुट योर कार्ड। सेकेंड थिंग, ऑटो लिमिट, यू कैन पुट सम सॉर्ट ऑफ ऑटो लिमिट फॉर टैप। ठीक है, जो भी टैप है उसके लिए आप ऑटो लिमिट डाल दो, 2000 1000 समथिंग लाइक दैट। इट शुड नॉट बी इनेबल फॉर अ बिग अमाउंट, समथिंग लाइक दैट। सो ये ऑटो टैप, ऑटो लिमिट फॉर टैप आप अपने बैंक में सेटअप कर दो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस आर दी बेस्ट प्रैक्टिसेस दैट वी नीड टू फॉलो for password and pin and this kind of security. Next thing, unique for each account, I think you already get it कि ये पासवर्ड हर एक अकाउंट के लिए यूनिक होना चाहिए। पासवर्ड मैनेजर, ये मैंने ऑलरेडी दिखा दिया कि गूगल पासवर्ड मैनेजर आप यूज कर सकते हो, इट इज वन ऑफ द सिक्योर वन, सेफेस्ट वन, एंड उसमें आप अपने सारे पासवर्ड स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, सेव कर सकते हो, बट मेक श्योर आपका जो जीमेल आईडी है जिसपे आप गूगल पासवर्ड मैनेजर यूज कर रहे हो, इट शुड हैव अ वैलिड 2FA, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। ठीक है, बैकअप्स आप ऑलरेडी ले रहे हो। सो बेसिकली मैं आपको कुछ सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक बताता हूं। देखो, सोशल इंजीनियरिंग जो टेक्निक है, ये वन ऑफ द नॉन टेक्निकल वे है जहां से आपका यूजर नेम, पासवर्ड या आपके बैंक डिटेल्स, ये सारे चीज को गेन किया जा सकता है और उसके साथ आपका फ्रॉड किया जा सकता है, राइट? तो मैं आपको एक फॉल्स आइडेंटिटी, इसमें करते कैसे हैं, जैसे आपने, बहुत फेमस है जाम तारा, आपने नाम सुना होगा, राइट? सो they are not skilled people, but they are what, they are well trained people. Means well trained in what? So they can pretend very well, like let's suppose that you are a person, तो आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से हो, so they will call you as a vendor, or maybe if you are interested in stock marketing or anything जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आपने फेसबुक पे या कहीं पे भी आपने डाला है, या आपके बैंक में एक बहुत अच्छा अमाउंट आया है, एंड ये सारा बैंक का भी मिली भगत होता है, सारा चीज इन्वॉल्व होता है, राइट? वहां से वो लिस्ट ले लेते हैं कि इन यूजर्स के पास ये कितना कितना पैसा है। दूसरा, दे विल ऑल्सो लुक आउट योर एक्टिविटी। ठीक है, जैसे आपने फ्लिपकार्ट पर कोई पेमेंट करा है, ठीक है, मान लो 10,000 का आपने पेमेंट करा है, सो दे विल लुक कि 10,000 का पेमेंट फ्लिपकार्ट पे हुआ है, एंड दे विल ट्राई टू कॉल यू एज अ फ्लिपकार्ट कस्टमर एजेंट कि हाय, आई एम कॉलिंग फ्रॉम फ्लिपकार्ट, यू हैव ऑर्डर समथिंग लाइक दैट, इतना इसका अमाउंट है, एंड द मोमेंट दे विल से यू द अमाउंट, आप उसको बिलीव कर रहोगे, राइट? क्योंकि उतने का ही ट्रांजेक्शन आपने करा है। सो दिस इज व्हाट द फॉल्स आइडेंटिटी दे ट्राई टू क्रिएट, एंड बेस्ड ऑन दैट दे विल ट्राई टू गेन योर ट्रस्ट, एंड बेस्ड ऑन दैट they will do something malicious with you, like they will say कि सर आपने जो ये प्रोडक्ट यूज करा है, अगर आपने उसमें 2000 और एड ऑन कर दोगे तो यू विल गेट दिस या समथिंग लाइक दैट,
ऐसे बोलकर आपको वो फिर क्या करेंगे, अपने ये में ये करेंगे, ऐड करेंगे, एंड दे विल डू अ मैसिव अटैक इन योर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। ठीक है, उनका गेन है कि आपका, मान लो उन्होंने वो आपको बोलेंगे कि इंस्टॉल दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, एंड उसके थ्रू हम आपका फ्लिपकार्ट या कुछ भी एप्लीकेशन विजिट करना चाहते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट दिस इंटायर अटैक विल बी हैपनिंग। ठीक है, एक और पैटर्न इसमें आपका चल रहा है, तो कि दे विल कॉल यू एज अ रिलेटिव और से लाइक फ्रॉम अ पुलिस मैन और समथिंग लाइक दैट, एंड बोलेंगे कि आपका जो भी पर्सन है ही हैज डन अ क्राइम। ठीक है, एंड आई एम कॉलिंग फ्रॉम अ पुलिस स्टेशन, ये दिस ऑल एक्टिविटी, लाइक दे विल गिव यू अ लॉट ऑफ स्टफ, लाइक कि ये सारा डिटेल्स है, और बहुत जो यूनिकली उनका आवाज भी बहुत सिमिलर होगा, जो भी मान लो पर्सन होंगे वहां पर, उनका बैकग्राउंड नॉइज जो होगा वो बहुत सिमिलर होगा। So they are using AI tools and everything just to gain your trust that moment itself. And they will also call you in a video call, like proper police dress, police, stuff, right? So don't believe on those kind of thing. Ask question, keep questioning, right? Because police don't use this kind of practice. Police don't call you, please, they will not going to reach you in WhatsApp, and whenever it is, they will ask to come into the nearest police station. Same practice bank will also do. Okay, same practice Flipkart will also do. You have to raise a request. At max, Flipkart will send you some email, something like that. Once you will reach to them, they will come to over the call or something like that. So these are the things that you have to keep in mind, and you have to question them. जब भी ऐसा कोई सिचुएशन होता है, keep questioning. Like from a mobile number you are getting a bank call, ask them, call from landline number, right? Why you are calling from your personal mobile, call from a landline number, right? And if there is anything related with the bank, try to go to the bank directly, right? Don't believe in this online stuff, for time being, until and unless in India there is a strong cyber security policies and everything. So those things we need to know. So how we can know this website is secure or not? Any website or anything like that, right? So first thing we need to look out is for HTTPS is there or not. Then whatever the domain is, it's very similar like what we are trying to do. And if it is a bank one, type it. If it is a social media, type it. Don't click any link. Like मैं एक example आपको बताता हूँ. WhatsApp में क्या आया कि देर इज अ फ्लड, और मान लो आरएसबी के बारे में ही किसी ने इंफॉर्मेशन दिया कि कल रहेगी कंपनी बंद, इस न्यूज को जानने के लिए इस लिंक को क्लिक करें, एंड आपको वहां पर एक लिंक रहेगा और समथिंग रहेगा, राइट? जब आप जाओगे इट विल नेविगेट टू योर फेक आरएसबी लॉग इन पेज और समथिंग लाइक दैट. द मोमेंट यू विल इंटर योर क्रेडेंशियल दे विल गेट इट, राइट? और समथिंग दे विल डू दैट. सो ये सारा चीज आपको अवॉइड करना है. टाइप इट, डोंट क्लिक ऑन एनी सस्पिशियस लिंक. मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आप कैसे वेरीफाई करोगे, राइट? And whenever you are downloading something like that, especially in your mobile, so always do it from Play Store. For website, whatever you are downloading, let's suppose that you need to download a file or anything, so download, you can do it, there is no problem. Let's suppose that I have to download a file. कोई भी एक फाइल बताओ जो आप यूज करते हो बहुत ज्यादा डेस्कटॉप में, मतलब डाउनलोड करते हो कुछ भी ऐसा. मान लो गूगल क्रोम ही, ठीक है, मान लो मुझे गूगल क्रोम का इंस्टॉलेशन डाउनलोड करना है, ठीक है. सो गूगल क्रोम से मैंने क्या किया, ये डाउनलोड करूंगा मैं गूगल क्रोम, एंड आफ्टर दैट आई कैन वेरीफाई एज वेल. देखो, अब आप डाउनलोड कर रहे हो, सो देर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, ठीक है, डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है इस पर्टिकुलर डाउनलोड को एग्जीक्यूट करने में. ये देखो, ये exe फाइल डाउनलोड हो गया, देर इज नो प्रॉब्लम इन दैट. बट ये जो exe फाइल है, अगर मैं इसको रन कर दूंगा देन देर इज अ प्रॉब्लम. मतलब मैं इसको अगर डबल क्लिक कर दूंगा, सो आई विल बी इन अटैक सिचुएशन अगर ये फाइल सेफ गार्ड नहीं होगा, राइट? सो हम क्या करेंगे, हम कोई भी फाइल अगर डाउनलोड कर रहे हैं, सो वी जस्ट नीड टू verify this particular file once. So here we can use it, and here from we can verify it, right? This particular file.
Okay, if it is not happening, then you can use another site, hybrid analysis. ये इसलिए नहीं यूज हो रहा है क्योंकि मैं ऑलरेडी इस फाइल को यूज कर रहा हूँ, गूगल क्रोम, राइट? So here we can use it. ओके, सो ये क्या करता है, देखो, एक साइट में एक पर्टिकुलर इसके पास सैंड बॉक्स है और उस पे इसको ये करता है, यूज करता है। तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी बता दिया, इसने व्हाइट लिस्ट है, ये देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट? इट्स सिक्योर वन, राइट? तो ये आपको ऑलरेडी बता देगा। बट एक मेलिशियस फाइल जैसे ही आप यूज करोगे तो यहाँ पर ये मेलिशियस मेलिशियस लिख के आ जाएगा, राइट? रेड एंड एवरीथिंग इट विल कम। सो ये आपको यूज करना है हाइब्रिड एनालिसिस, या आप वायरस टोटल भी डायरेक्टली यूज कर सकते हो। इट विल गेट इट ओपन एनी सॉर्ट ऑफ अटैचमेंट और एनीथिंग, ठीक है? कुछ नहीं करना है, बस कोई भी अटैचमेंट है, जैसे ये देखो, ये एक डायग्राम है, आई कैन यूज इट, आई कैन पुट इट, एंड बेस्ड ऑन दैट इट विल गिव मी ऑल द इंफॉर्मेशन। ठीक है, सो लाइक दैट वी कैन डू दैट फॉर एनी अटैचमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है? सो मेक श्योर दैट वी आर डूइंग इट। ठीक है, सिक्योरिंग योर डिवाइस। सो डिवाइस के लिए तीन ही चीज इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला चीज दैट यू हैव टू डू दी अपडेट्स। आपका सारा अपडेट है ना, वो होना चाहिए। वो कैसे चेक करोगे? तो सिंपल है, विंडोज अपडेट पे जाओ, ठीक है? विंडोज अपडेट, ठीक है? आप अपने यहाँ पर लिखना एंड इट विल ओपन दिस पर्टिकुलर पेज विंडोज एंड यू आर एबल टू सी योर device is up to date. If it is not update, then there is a problem, ठीक है? Ask your IT team to update it. Similar way you can check for your home device as well, and then your firewall should be get enabled and your device should have a strong password. यही तीन चीज आपको अपने डिवाइस को सिक्योर करने के लिए करना है। सिमिलर, राइट? सेम फॉर मोबाइल डिवाइस, आप अपने मोबाइल डिवाइस को भी सेम तरीके से सेव कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद ये जब आप चीज ये कर ले रहे हो तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एक आपका होना ही चाहिए इसमें 100%। ये आपको एक मेक श्योर करना है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है, जो भी पर्टिकुलर ये है, वो आपके मशीन में एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होना ही चाहिए। सेम फॉर फोन, फोन पे भी आपका एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होना चाहिए। आई हैव ऑलरेडी गिवन यू व्हाट सॉफ्टवेयर यू कैन यूज इट, सो बेस्ड ऑन दैट यू कैन यूज इट। एक और चीज बताता हूँ, अगर कल के डेट में कभी आपका यहाँ पर अटैक हो जाता है, मान लो आपके मशीन पे कोई अटैक हो जाता है, राइट? तो आप क्या करोगे? तो उस केस में, या आपका जो भी ये है मोबाइल डिवाइस है, उसको आपको लगता है कि दैट मोबाइल डिवाइस देयर इज अ प्रॉब्लम इन दैट, सो यू हैव टू यूज अ मालवेयर बाइट्स। दिस इज अ मालवेयर बाइट्स, ठीक है? एंड दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीवायरस रिमूवल, मीन्स मालवेयर को रिमूव करने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट एक सॉफ्टवेयर है। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, लैपटॉप्स के लिए, योर डिवाइस के लिए आप यू कैन डाउनलोड it from here। यहाँ से आप इसको ये कर सकते हो। सो दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वन, जहाँ से यू कैन डाउनलोड इट एंड बेस्ड ऑन दैट इफ देयर इज एनीथिंग malicious in your device, so it will notify you, and not only notify, it will block the entire thing। so basically स्पेशली मोबाइल पे हमको ये चीजें रेगुलरली चेक करनी चाहिए, हर 3 मंथ्स पे और समथिंग लाइक दैट, कि अगर कोई एक साइलेंट वेयर भी इंस्टॉल्ड है। जैसे आपने इसका नाम सुना होगा, राइट? एक कौन सा अटैक हुआ था मोबाइल वाले पे, आप बता सकते हो, जिसमें सारे मिनिस्टर्स या जो भी थे, इवन राहुल गांधी का भी नाम आया था कि दैट उनका मोबाइल हैक था। आप लोगों को कुछ भी ऐसा आपने सुना है? पेगासस, कोई नाम सुना है आपने, पेगासस ऐसे करके? नहीं सर। सो बेसिकली क्या है कि पेगासस एक अटैक था जो कि रशियन गवर्नमेंट ने परफॉर्म
करा था, ये हमारे ही किसी लोगों ने परफॉर्म करवाया था या कुछ भी। बट उसमें क्या हुआ कि हर एक मिनिस्टर्स, उनका फोन हैक्ड था विदाउट देयर नॉलेज, उनको कुछ पता नहीं था। एंड एवरीथिंग इज बिन डन, लाइक जो भी वो बात कर रहे थे, जो भी चैट कर रहे थे, एवरीथिंग विल बी टेकन। सो उनका सारा डिटेल्स वो शेयर्ड था। एंड बेस्ड ऑन दैट, if they are aware and this kind of software, if they were running on a frequent time, so अगर ऐसा कुछ होता भी उनके मशीन पे, तो it can make it clear. So ये सारा चीज हमको ध्यान में रखना है कि ऐसा अगर कुछ भी है तो how we can identify and how we can secure it. So ये मेरा एक सजेशन है that you can use malware bytes basically, right? Next thing, social media. सो सम पीपल थिंक कि जितना हम सोशल मीडिया पे शेयर करेंगे, जैसे वो कहीं भी जा रहे हैं या कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, सो दे अपडेट ईच एंड एवरीथिंग। what if somebody is tracking your pattern, right? What exactly you do, how you do, like what all places you visit, and based on that they set up some crime. like मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देयर इज अ कंपनी ऑनर, राइट, एंड वो बहुत फ्रिक्वेंटली विजिट करते थे। मान लो कि देयर इज अ फॉरेन कंट्री, वहां पे वो फ्रिक्वेंटली विजिट करते थे, राइट। उनको ऐसा सेटअप किया गया एंड द इंटायर सेटअप इज बीन डन बाय हिज ऑन कंपनी मैनेजर, राइट, कि उनको एक फेक क्यूआरएल पेज आया, ठीक है, एंड दे वर लुकिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ मान लो कोई सर्विस या किसी चीज के लिए। जैसे ही उन्होंने उस लिंक को क्लिक करा, दे मेड अ लॉट ऑफ पेमेंट, एंड उनका उनका पूरा जो भी बैंक के एक्टिविटीज थे, जो भी चीजें थी, वो ऑल ट्रांसफर हो गई और उनका पूरा डिवाइस क्लोन हो गया, राइट। सो एंड उसके बाद वो बहुत सारे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थे उसके डिवाइस में, वो सारा उनको उस समय पता नहीं चला। स्लोली स्लोली उनको ब्लैकमेल करना गया, स्टार्ट किया गया, 1 2 3 4 5, एंड दे हैव टू पे अ लॉट ऑफ अमाउंट। When things are very nasty, then they reach out to the cyber crime, and they raise a complaint and everything, and then we did the analysis, and based on that we find it out, like where from it gets originated, right? So उन्होंने क्या करा कि जो उनका कंपनी मैनेजर था, he knows कि वो कब किस टाइम पे कहाँ जाते हैं, and based on that they framed the entire hotel in that particular way, right? सो ये सारा चीज आपको ध्यान रखना है। एंड सोशल मीडिया पे आप जितना कम शेयर करो उतना बेटर है आपके लिए। एंड इफ यू आर डूइंग इट, डू इट इन क्लोज लूप, राइट। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको आप लिमिटेड करो, किसी भी अनरिकॉग्नाइज पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करो। सो दोज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू डू इट। प्राइवेसी सेटिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज कि आपका जो प्रोफाइल है वो पब्लिक नहीं होना चाहिए, इट शुड बी प्राइवेट, बिकॉज AI can generate your voice, your child voice, your any relative or anything is there. They can create not only voice, they can create a fake video, right? So something like that, or maybe उनके फोन से even, let me show you. देखो, आपको लगता है नंबर, राइट, आपका नंबर भी स्पूफ हो सकता है, स्पूफ फोन नंबर, राइट। सो देर इज अ लॉट ऑफ वेज कि अगर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, कॉलर आईडी स्पूफिंग, ठीक है। So there is a lot of ways where I can spoof your caller ID, a lot of things, right? So अगर मेरे ही नंबर से आपको कॉल आ रहा है, right, और मैसेज आ रहा है, first thing they will not call you, okay, they will do the text or something like that कि आपका जो भी मान लो चाइल्ड है या फिर रिलेटिव है वो हॉस्पिटल में है, एंड उसके मोबाइल से मैं ये मैसेज कर रहा हूँ, राइट। सो please send 10,000 rupees immediately, or please come to this particular place or something like that, right? So those kind of spoof that can be done, एंड आपको उस पे क्रॉस वेरीफाई करना है, क्रॉस चेक करना है, ठीक है, राइट। लाइक दैट यू कैन वेरीफाई दोज थिंग, डोंट पैनिक इन दैट सिचुएशन, first try to verify it, and then based on that you can take care. If there is a risk that you are able to see in your intuition, don't try to perform the same what they are trying to do, right? Either is a small amount itself, okay. So this part we need to make sure, okay. We just need to do three things: आइडेंटिफाई, एक्ट एंड रिपोर्ट। सो आइडेंटिफाई करो जो भी फ्रॉड है आपको ऐसा लगता है, सो हाउ यू कैन आइडेंटिफाई, क्रॉस क्वेश्चनिंग, राइट, क्रॉस वेरिफिकेशन, like if somebody is calling from your relative phone number, or doing some text, drop that call and verify with the actual number, the number that you have,
राइट, क्योंकि हमेशा इस कंडीशंस पे, जैसे मैंने मेल दिखाया, मेल स्पूफ हो सकता है, बट क्या होगा कि जब आप रिप्लाई करोगे उस मेल पर वो रिप्लाई नहीं जाएगा। उसी तरह सो जो फोन नंबर है वो स्पूफ हो सकता है, बट वो एक तरीके से ही कम्युनिकेशन आएगा, बट जब आप वापस उस नंबर पे कॉल करोगे उस नंबर पे कॉल नहीं जाएगा, क्योंकि वो उसका नंबर नहीं था, वो गेटवे पे वो नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। सो इफ यू विल कॉल द राइट पर्सन यू विल गेट टू नो व्हाट इज हैपनिंग। सिमिलर वे आपको हर एक को भी कोई भी कॉल आ रहा है उसको आप वेरीफाई करो। बैंक का है so ask them to call from a landline number, Flipkart का है तो ask them to verify the exact number, whatever the numbers that written in the Flipkart customer care। इंटरनेट पे नहीं देखना है, इंटरनेट पे अगर आप सर्च करोगे फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर नंबर, देयर इज अ लॉट ऑफ नंबर्स यू आर एबल टू सी, और उसमें वो बहुत सारे फेक नंबर होंगे, तो इंटरनेट पे नहीं देखना है। अगर आप बैंक को फोन कर रहे हो, आप सबके क्रेडिट और एटीएम कार्ड के पीछे बैंक टोल फ्री नंबर लिख के देती है, आपको उसी नंबर पे कॉल करना है, इंटरनेट पे जो नंबर दिख रहा है उस पे कॉल नहीं करना है। सिमिलर वे जो भी फेसबुक और जो भी वेबसाइट है उस पे आप जाओ और उसका जो भी पर्टिकुलर वहां पर लिखा हुआ है कॉन्टेक्ट अस में, आपको उसी नंबर पे कॉल करना है या उसी नंबर पे आपको ये करना है। इंटरनेट पे जैसे आप सर्च करेंगे, अगर हम यहाँ पे सर्च करेंगे फ्लिपकार्ट सपोर्ट सेंटर कस्टमर केयर नंबर, आपको यहाँ पे देखो बहुत सारे फेक वेबसाइट दिखेंगे, कस्टमर केयर नंबर, राइट। ठीक है, ये देखो ये सही है। उसके बाद यहाँ पे ये सारा जो साइट है जितना है ना, डोंट गो ऑन दिस पर्टिकुलर साइट। आप इस पर्टिकुलर साइट में आप जाके आपको जो भी मिल रहा है यू कैन डू दैट, बट अपार्ट फ्रॉम दिस किसी भी पर्टिकुलर साइट पे आपको वहां जाकर ये पर्टिकुलर नंबर्स पे कॉल नहीं करना है। ठीक है, ये देखो 444 ब्ला ब्ला ब्ला, डोंट ट्राई टू कॉल ऑन दिस ऑल नंबर। ओके, सो दिस इज अ सजेशन। ठीक है, educations that we are already going through, so and then how you can do all of those बैंक के लिए हम कुछ बात कर लेते हैं, बैंक सिक्योरिटी हमको कैसे करना है। ठीक है, सो सबसे पहले जब भी हम बैंक सिक्योरिटी की बात करते हैं, सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ, कोई भी पर्सनल आपसे बात कर रहा है, राइट, डोंट इंगेज विद देम, राइट, योर बैंक विल नेवर डिस्कस any sensitive information over a phone call। they will not say कि change your password or your what is your ATM pin or anything like that over the phone। if it is happening it means you need to take a pause, right, वहां पे रुक जाओ and say I am going to come to the bank, let me visit the bank or nearest bank। ठीक है, so this is one thing, don't engage। second thing, check your account regularly। अगर there is a any VPS, कोई भी ऑटोमेटिकली ट्रांजेक्शन्स आपके मशीन्स में या आपके अकाउंट में दिखता है, बैंक अकाउंट में, सो यू ट्राई टू फाइंड इट आउट। आपका ट्रांजेक्शन या स्टेटमेंट है, महीने में एटलीस्ट एक बार रिव्यू कर लो। अगर उसमें 200-2000 रुपीज भी है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रीजन ऑफ इट एंड बेस्ड ऑन दैट टेक अ क्लैरिफिकेशन फ्रॉम योर नियरेस्ट बैंक। ठीक है, इफ एनी रेड फ्लैग्स यू आर एबल टू सी, देन ओपन वाईफाई यूज करके हमको बैंक पर लॉगिन नहीं करना है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि हम यूज कर रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है, नेट बैंकिंग है ना, आप लोग यूज करते होगे, राइट। सो आईसीआईसी नेट बैंकिंग, तो देखो इसमें दो चीज है। जैसे मान लो आप आईसीआईसी खोलोगे, ठीक है, ही दे विल आस्क मी टू लॉग इन। सो 2-3 प्रैक्टिसेस वी नीड टू नो। ओके, पहला चीज कि हमको हमेशा ये जो है, जब भी हम बैंक खोल रहे हैं वी हैव टू ओपन इन इनकॉग्निटो मोड। किस पे? इनकॉग्निटो। और यहाँ पर आपका जैसे ये है क्रोम है तो आपको प्राइवेट विंडो दिखेगा, सॉरी मोजिला है तो, और जब भी आपको ये यूज कर रहे हो तो न्यू इनकॉग्निटो मोड दिखेगा। ठीक है, इट्स दैट सिंपल। ठीक है, यहाँ पर इनकॉग्निटो में आप जैसे ही करोगे तो आपका ब्राउजर पे जो भी अंदर, जो भी इस मशीन के अंदर कैशे कुकी कुछ भी होगा,
उससे इसको कोई मतलब नहीं है, ना ही ये कोई सेफगार्ड इंफॉर्मेशन आपके इसमें करेगा डिवाइस में। सो इसलिए आप यहाँ पर क्या करो, यहाँ से आप यूज करो। और दूसरा एक और चीज में जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ। आईसीआईसीआई बैंक में गए, नेट बैंकिंग आप ओपन करोगे, ठीक है। दिस इज अ नेट बैंकिंग, यू ओपन इट, ठीक है। ये देखो यहाँ पे कीवर्ड का साइन दिखता है हमेशा, जब भी आप बैंक में जाओगे यू हैव टू यूज दिस कीवर्ड, ओके। यहाँ पे इस कीवर्ड यूज करके हमको जो नॉर्मल कीवर्ड है उससे इंफॉर्मेशन नहीं देना है, ठीक है। क्योंकि माई लैपटॉप कैन बी कॉम्प्रोमाइज्ड इन दैट सिचुएशन। तो ये क्या होगा कि जो भी कीवर्ड मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा, इट कैन बी hijacked by the attackers or something like that। सिमिलर वाईफाई पे भी अगर हम यूज कर रहे हैं तो भी किसी भी कंडीशंस में यू हैव टू गो टू दिस वर्चुअल कीवर्ड, एंड आपका जो भी आईडी होगा, ठीक है, यू हैव टू यूज इट, एंड बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू क्लिक ओके। इज दैट सिंपल, ठीक है। पासवर्ड में भी यू हैव टू यूज दिस पर्टिकुलर कीवर्ड, है ना। दैट इज व्हाई बैंक हैज गिवन दिस पर्टिकुलर फीचर्स टू यू, ठीक है। एंड यही चीज हमें करना है जब भी व्हेन वी आर यूजिंग अ नेट बैंकिंग। इज इट क्लियर? Yes, sir. It is very much clear. ओके, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू डू दैट, एंड अवॉइड फ्री गिफ्ट्स और कैशबैक्स। अगर कोई आपको फ्री गिफ्ट्स, कैशबैक, कोई लिंक उनके थ्रू दे रहा है तो डोंट क्लिक ऑन इट, ओके। एक्शंस अ लॉट नाउडेज, ओके। सो बेसिकली जब भी यूपीआई के लिए कुछ आपका सजेशंस है मुझे। सबसे पहले आप क्या करोगे कि जब भी आप किसी को पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, सो देयर इज एन ऑप्शन टू वेरीफाई द रिसिपेंट आईडी और नेम। सो यूज दैट पर्टिकुलर फीचर यूपीआई पे, वेरीफाई द रिसिपेंट एंड वेरीफाई इट फर्स्ट बिफोर मेकिंग द पेमेंट। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इन द यूपीआई पेमेंट, ओके। आफ्टर दैट वन मोर थिंग दैट यू नीड टू नो, दैट रिसीव मनी। जब भी कोई बोल रहा है कि मैं 2000 5000 आपको भेज रहा हूं, एंड यू आर एबल टू सी समथिंग इन योर फोन पे, गूगल पे और समथिंग लाइक दैट, सो वन थिंग वी नीड टू नो, पैसा रिसीव करने के लिए, ठीक है, हमको पिन यूपीआई का वो डालने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा कुछ आता है रिक्वेस्ट तो डिलीट दैट रिक्वेस्ट, डोंट इंटर योर पिन। क्योंकि जैसे ही आप पिन को ये करोगे तो टू थिंग होगा, एक तो वो ट्रांजेक्शन ऑटोमेट हमेशा के लिए हो सकता है, दूसरा उसी मोमेंट पे वो पैसा डेबिट हो जाए, ठीक है। तो हमेशा डेबिट के केस में ही आपको यूपीआई का पिन डालना होता है, ठीक है। तो जब भी आप पैसा रिसीव कर रहे हो, कोई रिक्वेस्ट आता है एंड वहां पर आपका पिन इंटर करने के लिए आपको बोला जा रहा है, सो डोंट क्लिक इट, वहां से बाहर चल जाओ, अदरवाइज योर मनी विल गेट डेबिटेड, ठीक है। ठीक है, दूसरा, कोई भी क्यूआर कोड है, आप उस क्यूआर कोड पर नहीं मतलब आप उसको ट्रस्ट कर रहे हो तो देन यू कैन ओपन इट। इफ यू डोंट हैव अ ट्रस्ट ऑन दैट पर्टिकुलर यू नो शॉप और समथिंग लाइक दैट, ट्राई टू अवॉइड द क्यूआर कोड, ठीक है। क्योंकि क्या होता है क्यूआर कोड पे, देखो एक अटैक होता है क्यूआरएल जैकिंग, और ये बेसिकली कौन करते हैं, छोटा शॉप, जैसे आप मान लो कभी यहाँ पे उसको पता है कि इट्स अ ट्रैवल प्लेस, सो यहाँ पर क्या है, हम क्या कर सकते हैं, हम ये वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है, क्यूआरएल जैकिंग। हम क्या करेंगे यहाँ पर, वी कैन क्रिएट अ क्यूआरएल, ठीक है, हम कोई भी क्यूआरएल आपका बना सकते हैं। देयर इज अ क्यूआरएल जैकिंग ऑफ व्हाट्सएप और किसी भी पर्टिकुलर बैंक का, वहां क्यूआरएल को हम क्या करेंगे, वहां पर रखेंगे। जब भी आप उसको क्लिक करोगे या स्कैन करोगे और उसके बाद आप उसको पेमेंट पर जाओगे और अपना पिन डालोगे, यू आर ऑथेंटिकेटिंग कि वो क्यूआरएल पे जो भी एक्शन लिखा हुआ है वो सारा एक्शन परफॉर्म होगा। तो जब भी आप किसी छोटे शॉप में जा रहे हो या आपको वो सस्पिशियस लग रहा है, ट्राई टू डू द पेमेंट विद द नंबर, डोंट ट्राई टू scan that particular QRL. If it is a legitimate one, then there is no problem, ठीक है। But if it is a something new place or you are going it, then always try to avoid the QRL scan, ठीक है। And your UPI pin should be very strong. Make sure that your biometrics are enabled, means your fingerprints
or something like that, that you have to enable it. Okay. Mobile security. So for this, first thing, आप अपना मोबाइल जिसमें आपका पूरा ट्रांजेक्शनल और सारे डिटेल्स हैं, फर्स्ट थिंग आप उसको प्राइवेट रखना स्टार्ट करो. ठीक है. डोंट शेयर दैट मोबाइल विथ योर चाइल्ड, विथ एनीवन, बिकॉज देयर इज अ प्रॉब्लम. बिकॉज if they are using it, they must use for some sort of game, something like that, which is openly available in internet. तो वो क्या करेंगे, they will follow it because they don't have that kind of maturity level as of now. So they will try to follow it, and based on that they will make your phone vulnerable to use, right? So that is what we need to make sure, that whatever we are downloading, it should be downloaded from a trusted source, not from browser इन योर मोबाइल, राइट? बिकॉज उसमें क्या होता है कि मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर भी हम बहुत सारा हिडन कोड छुपा देते हैं. इट विल लुक लाइक अ लेजिटिमेट वन, बट इट्स नॉट अ लेजिट एप्लीकेशन. ठीक है. सो ये सारा चीज आप मेक श्योर करो. एंड आपका जो भी पर्सनल फोन है वो आप अपने पे ही लिमिट रखो. डोंट ट्राई टू शेयर विद एनीवन. एनीवन मींस एनीवन, राइट? बिकॉज आई हैव शोन मोबाइल, you know one second, let me show you one thing. So mobile spy app monitoring tool. So I'm just saying, okay, this is what, this is also, okay, okay. सो दिस आर दी ऐप, द बेस्ट फोन ट्रैकर. ठीक है. अब ये देखो, ये फोन तो ये बना है तो पेरेंटल कंट्रोल के लिए. ठीक है. बट इसका क्या है, लोग यूज करते हैं मेलिशियस पर्पस के लिए. ठीक है ना? व्हाट इज दिस मेलिशियस पर्पस? देखो, ये आपका पूरा ये सारा बताएगा कि ये कहाँ से क्या यूज हो रहा, लोकेशन क्या है. ठीक है. ये हमेशा फोन का लोकेशन आपको ये एप्लीकेशन बताएगा, राइट? उसके बाद कॉन्टेक्ट्स कहाँ वो कर रहे हैं, क्या मैसेजेस कर रहे हैं, राइट? यू आर एबल टू सी द इंटायर मैसेजेस, जो भी वेबसाइट वो यूज कर रहे हैं उसमें वो क्या यूज कर रहे हैं. यू आर एबल टू सी ईच एंड एवरीथिंग, राइट? तो ये सारा चीज वो ये बताते हैं. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स अ क्राइम एज वेल. ओके. एंड आप उसका क्या कर सकते हो, की लॉगर यू कैन इनेबल. ठीक है. ये देखो इंस्टाग्राम पे, आई थॉट यू ऑलरेडी टॉक टू हर. ठीक है. ये जो भी लिखेगा ये सारा चीज आपको दिखेगा, राइट? उसके सारे कॉन्टैक्ट, ब्राउजर हिस्ट्री. ठीक है. उसके सारे आप स्क्रीन रिकॉर्ड ऑन कर सकते हो. ठीक है. कि कब क्या वो इसके स्क्रीन पे क्या चल रहा है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम. ठीक है. एवरीथिंग यू कैन ट्रैक इट फ्रॉम हियर. उसके सारे फोटोज, वीडियोज, राइट? टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स अ क्राइम. डोंट डू दैट, राइट? बट अगर आपके फोन में ये इंस्टॉल्ड है तो आप इसको कैसे वेरीफाई कर सकते हो? द सेम मालवेयर बाइट्स आप उसको कर सकते हो, एंड फ्रॉम देयर यू कैन ट्रैक इट आउट. ओके. क्लियर है? तो ये चीज हमको हमेशा ट्रैक करके रखना है कि मेरे मोबाइल में क्या क्या चीजें अवेलेबल है और मेरे कंसेंट के बिना वो क्या क्या चीज यहाँ पर इनेबल्ड है. दिस पार्ट इज क्लियर गाइस? एनी कंफ्यूजन हियर? ठीक है. No, ये भी sir. देख सकते, ये So भी देख can you सकते हो. repeat? What I'm trying to say is, see, there are some apps, right? So what that particular app will do, so where we are, yeah. So okay. So basically mobile में क्या है कि if you will not keeping your phone personal, ठीक है, then there is a problem. What is the problem? If I have a bad intention and somehow I gain your trust, ठीक है, किसी भी तरीके से मैं आपका ट्रस्ट गेन कर लिया, so what I will do, I will install something like that in your phone, right? And based on that मुझे बस 2 मिनट चाहिए. ठीक है. मैं जाऊंगा,
यहाँ से एक malicious फाइल यहाँ पे गेन करूंगा। ये देखो एंड्रॉइड के लिए ये फ्री अवेलेबल है, iOS के लिए फिर भी वी नीड टू स्पेंड सम मनी, बट एंड्रॉइड के लिए तो ये फ्रीली अवेलेबल है। आप डाउनलोड करोगे, यहाँ यूजर नेम पासवर्ड सेट करोगे, इस वेबसाइट में जाओगे और उसके बाद ये वेबसाइट आपको हर एक चीज दिखाएगा। देखो ब्राउजर, पिक्चर, फेसबुक, व्हाट्सएप, जो जो आप एक्सेस करते रहोगे वो सारा चीज दिखाएगा, एवरीथिंग। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दैट योर इंटायर डिटेल्स विल कम, ठीक है, टू मी। एंड बेसिकली ये लोग करते हैं टू ट्रैक एंड एवरीथिंग, टू गेट इट नो इन द फैमिली एंड एवरीवेयर, राइट? बट to be very honest, this is a crime in India. We have a IT Act 2000. It's a policies, and based on that, if you are able to do, and if let's suppose that you are doing with your children, with your wife or anyone, right, still it is a crime, right? So don't try to do that. And if for human safety, this is very important. If something is there in your phone, because your camera can be spoofed, right, it can be on, and that is downloading in a means like किसी भी साइट पे वो लाइव हो सकता है। तो ये सारा चीज को आपको ट्रैक करना है। और ट्रैक कैसे करोगे? मैंने आपको पहले ही बताया, मालवेयर बाइट्स, यू हैव टू यूज इट, एंड उसको आप अपने फोन में इंस्टॉल करो और एक स्कैन करो, एंड यू हैव टू डिसेबल इट। सो दिस इज द टूल दैट यू हैव टू डाउनलोड इट फ्रॉम द प्ले स्टोर, एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन स्कैन इट, राइट? ऐसा कुछ भी है सो यू कैन डिलीट राइट अवे, राइट? क्लियर है? And don't give your personal phone to anyone in your family, because you don't know, right, what somebody will do that, so be vigilant and use zero trust policy in that scenario, okay? Because your device, your asset is totally belongs to you, okay? Cybersecurity is a big field. Like 2 hours is not enough to cover everything, but this is how it is. Okay, so I'm going to give you something like that. If a cyber crime happens, so what you need to do that. So basically, whenever a cyber crime is happening, you have to inform to the cybercrime.gov.in. आप वहां पर जाओगे and you can report a crime, right? Like anything has happened, and if there is something very critical situation for you, then you can call this 1930. For your safety, what I can tell you, whatever the information that you are going to share here, it is totally safe, right? And your name will not be disclosed. Let's suppose that somebody has uploaded a picture of you in Instagram or something like that. So what you can do that, you can report it here, okay? Anything you can report, right? Abuse to social media, anything, right? Like a cyber crime, anything that you can do that, register a complaint, and immediately action will happen. If let's suppose that someone has did a financial fraud or children related crime or anything, you can report to anything. And based on that, first thing that you have to report it here, and take the printout, take the complaint number, and go directly to your nearest police station with all of those details. Then only they will take necessary action, otherwise they will not take necessary action, है ना? किसी के साथ भी कोई ऐसा कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है अभी, या कोई भी साइबर क्राइम फ्रॉड? अभी तक नहीं हुआ सर। हाँ जी, सॉरी। अभी तक तो नहीं हुआ है, पर 1 मंथ बैक हमको एक कॉल आया था कि मैम आपका, मैं साइबर ये से फोन कर रहा हूँ क्राइम से, कि आपका फोन नंबर गलत काम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, हाँ लाइक हाँ हाँ, दिस। राइट। या तो मैंने थोड़ा ये रिएक्ट की, तो फिर उन्होंने मेरे साथ में जो सीनियर है उनको भी मैंने दिया, तो वो भी सर भी ये किए, तो फिर फटाक से उन्होंने काट दिया। राइट, सो दैट इज अ गुड थिंग कि यू आस्क्ड अ क्वेश्चन, राइट? सो यहीं पे आप क्या कर सकते हो, ये सारा चीज कर सकते हो। एंड मीन्स लाइक अगर आपका कोई फोन नंबर पे कितने सिम ऑन है, ये सारा चीज है, तो वो भी आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पर आप कोई भी कंप्लेन कर सकते हो, दिस इज फॉर श्योर, ओके? उसी तरीके से हर एक स्टेट का, ठीक है, जैसे आप देखोगे कोई भी एक स्टेट का, ठीक है, तो उनका वहां पर, ठीक है, ऑनलाइन पोर्टल है, ऑनलाइन
रिपोर्ट FIR पोर्टल, ठीक है, किसी का भी देखोगे तो सबका एक ऑनलाइन रिपोर्ट FIR पोर्टल है, ठीक है। दिस इज यू कैन यूज एज वेल, ओके। सो दिस इज फॉर द झारखंड पुलिस, फॉर दैट आपके हर सिटी में भी वो चीज अवेलेबल होंगे, ठीक है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज सेफ, ओके। इन एनी सिचुएशन, आप कोई भी सिचुएशन पे हो, आप यहाँ पे यूज करो, आप अपना पूरा डिटेल्स दो, एंड इमीडिएटली विद इन मिनट्स यू विल गेट अ कॉल एंड यू कैन डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग, ओके। सो अगर आपको कुछ भी डाउट है, सो यू कैन डू दैट, ठीक है। Is that part clear, guys? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, yeah. Tell me. सर आई हैव अ क्वेश्चन। Hmm. इन केस अगर हमारा फोन चोरी हो जाता है Yes. तो इन दैट केस हम क्या करें? बिकॉज लास्ट ईयर क्या हुआ, मेरे फादर इन लॉ का फोन चोरी हो गया था और Hmm. अनफॉर्चुनेटली नेक्स्ट डे संडे था और वो रात में चोरी हुआ था, तो हम रात में कुछ कर नहीं पाए। और जब मंडे हम गए कि हम अपना सिम ब्लॉक करवाना है और फिर अपने बैंक में कि ये करना, तब तक देख चुके थे कि वो बैंक में जितने भी पैसे थे वो सारे जा चुके थे। उन्होंने क्या किया, यूपीआई बना लिया था। फादर Hmm. इन लॉ का यूपीआई नहीं था, बट उन्होंने यूपीआई क्रिएट किया और Hmm. ओटीपी भी ऑफ कोर्स वहीं उनके पास ही गया होगा और उन्होंने सारा Hmm. बैंक खाली कर दिया। तो इन केस अगर हमारा फोन चोरी हो सकता है तो सडनली हम क्या एक्शंस लेंगे, या फिर क्या ऐसे कर सकते हैं कि वो यूपीआई वगैरह वो फिर से रिक्रिएट ना कर सके अपने एंड से? पहला चीज, फर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू कि हम जो भी नंबर है, देखो दो चीज हमें ब्लॉक करना है, ठीक है। पहला चीज है कि जो भी फोन है उसका जो ये है, मान लो आप जियो में यूज कर रहे हो, राइट। तो आपका जो भी नंबर है उससे रिलेटेड IMEI इट विल शोकेस इन दैट जियो, ठीक है। सो यू कैन कॉल टू द जियो कस्टमर केयर नंबर एंड इमीडिएटली उस सिम पे जो भी IMEI चल रहा होगा, यू कैन आस्क देम टू डिसेबल इट, मतलब आपका नंबर उस फोन पर यूज हो ही नहीं सकता, ठीक है। दूसरा चीज, you have to call them and ask to temporarily disable that particular number immediately until and unless you are taking a new sim. So this is the two factor you need to do it immediately, and ये आपको 5 मिनट का जॉब है जो कि आप कर सकते हो। सेकेंड थिंग which you need to do that to stop all the transactional communication with that number. So आप immediately क्या कर सकते हो, अपने बैंक में कस्टमर केयर को फोन करो, इमीडिएटली जो भी आपका डेबिट कार्ड के पीछे का नंबर है उस पे कॉल करो एंड आस्क देम टू टेम्पोररी डिसेबल योर फोन नंबर फॉर ऑल दी बैंक कम्युनिकेशन एंड ट्रांजेक्शनल पर्पस, ठीक है। ये दो चीज यू हैव टू डू इट इमीडिएटली। वंस यू हैव डन दिस टू थिंग, then you can go back and report into the cybercrime.gov.in। उस पे एक कंप्लेन लिखो और कंप्लेन में ये लिखो कि ये मेरे फोन का IMEI है, इस IMEI पर अगर कोई भी नया सिम चल रहा है, सो प्लीज गिव मी दी इंफॉर्मेशन, और उसका जो भी आपने जब मोबाइल आप लेते हो तो उसका बिल या जो भी चीज आपके पास है उसको अटैच करके वहां डाल दो, सो दैट इट कैन बी प्रूवन दैट इज बिलोंग्स टू यू। तो अगर कोई नया सिम भी उसमें लग रहा है या कोई नया नंबर भी, सो यू विल गेट इट नोटिफाइड कि वो पर्टिकुलर उसमें क्या नंबर चल रहा है आपके डिवाइस में, and you can take necessary action. So this is one thing, you don't need to go to the police station, you can do everything by yourself. After that, if you feel कि इस IMEI पर कोई भी सिम या कोई भी ऑपरेटर यूज नहीं होना चाहिए, वो फोन ब्लॉक हो जाना चाहिए, so that is also you can do that in the cybercrime.gov.in. You can write it that in this IMEI this belongs to me and it has been stolen. आप इसमें जो भी चीजें चल रही है वो सारा चीज डिसेबल कर दो। आई डोंट नीड माई फोन, अगर वो रिकवर नहीं हो रहा है तो। समझ में आया? तो इस केस में क्या होगा, आपका फोन जो है वो फोन इंटायरली लॉक हो जाएगा, आपका IMEI लॉक हो जाएगा और उस फोन पर कोई भी सिम ऑपरेट नहीं हो पाएगा। मतलब वो फोन इज जस्ट लाइक अ डब्बा एंड इट कैन बी ओनली यूज फॉर इंटरटेनमेंट एंड अदर पर्पस, नॉट फॉर एनी अदर पर्पस, है ना। थैंक यू ओके, ठीक है।
तो अभी हम वी जस्ट हैव 4 minutes. सो देखो केस स्टडी क्या क्या अटैक होता है. सो फिशिंग अटैक्स टारगेटिंग बैंक कस्टमर्स इज वेरी सिंपल. ठीक है. सो व्हाट यू नीड टू डू, वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस और वट एवर द सेंडर ईमेल एड्रेस दे आर सेंडिंग. Ask them to send proper email or whatever, like over the call if it is. So then ask them to send a email and verify the email address. ठीक है. वो email क्या हो कैसा होना चाहिए, abc@sbibank dot something like that. तो वो वेरीफाई करो. जो भी SBI का डोमेन होगा sbi.com, उसी हिसाब से उसका ईमेल एड्रेस का भी डोमेन होना चाहिए. ठीक है. ओटीपी उनके साथ आपको शेयर नहीं करना है, क्योंकि ओटीपी इज फॉर योर पर्सनल यूज. You don't have to share your OTP to any other person, because OTP is totally belongs to you, solely belongs to you. ठीक है. And then थर्ड, ऑफिशियल बैंक एप्स यूज करो, नॉट समथिंग एल्स. लाइक एसबीआई ही है तो एसबीआई ही यूज करो, नॉट अ थर्ड पार्टी ऐप. तो ये सारा चीज करना है. उसी तरीके से मैंने सारे आपको यहाँ पे केस स्टडी लिख के दे दिए हैं. ठीक है. विच यू नीड टू फॉलो एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन अंडरस्टूड. ठीक है. आई विल शेयर दिस स्लाइड with everyone and there is a lot of information into that. ठीक है. तो आई बिलीव कि आप इस साइट को पढ़ोगे एंड इन फ्यूचर इफ वी गेट अ चांस देन वी विल कनेक्ट अगेन एंड विल डिस्कस सम ऑफ द की एसेंशियल थिंग. ठीक है. सो एवरीथिंग हैज बीन रिटन हियर. आई विल शेयर with the HR and based on that you guys can take it up. Okay. And one more thing I just want to tell you is for this one USB drive. Okay. अगर आपको कोई भी USB ड्राइव, पेन ड्राइव या ये भी कोई भी चीज आपको आपके घर के बाहर या कहीं पे भी मिलता है, डोंट डायरेक्टली प्लग इट. या आपके कंपनी में भी आपको मिलता है, आप अपने सिस्टम पे उसको मत यूज करो, बिकॉज इट कैन बी यूज फॉर पिगी बैंकिंग. मतलब मैंने एक मेलिशियस चीज बनाई, जैसे ट्विटर पे आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा अभी साइबर ये हुआ था. ठीक है. अटैक हुआ था ट्विटर पे और बहुत सारे चीजें कॉम्प्रोमाइज हो गई थी. वो कैसे हुआ था, पेन ड्राइव से ही हुआ था. कि एक मेलिशियस यूजर ने वो पेन ड्राइव एक अपने फ्रेंड को दिया, उससे फ्रेंडशिप करी उसने 6-7 months में, और उसका अटैक ही था ट्विटर को कॉम्प्रोमाइज करने. उसको पता था कि ये पर्सन को मूवी देखना बहुत पसंद है, तो उसने क्या किया, पेन ड्राइव में मालवेयर डाला, और वो मालवेयर ऑटो एग्जीक्यूटेड मालवेयर था. मतलब जैसे ही वो पेन ड्राइव कहीं पे भी डालेगा, वो सारा फाइल उसके अंदर जो भी होगा वो सिस्टम में ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा. ठीक है. और उसने क्या करा, उस पर्सन को दिया, उसको पता था कि ये जाएगा और अपने इसमें लगाएगा डिवाइस में, और उसके बाद ही विल लुक इट आउट सम मूवी एंड समथिंग लाइक दैट. जैसे ही उस पर्सन ने लगाया, वो तो मूवी एंजॉय कर रहा था, बट फ्रॉम बैक एंड द इंटायर सर्वर ऑफ ट्विटर इज बिन कॉम्प्रोमाइज बिकॉज ऑफ दैट रीजन. नहीं, बिकॉज यू हैव हुआ है, आपके मशीन से इनिशिएटेड हुआ है, राइट? So whenever team don't directly plug and don't directly see those all things, especially in your personal assets. ठीक है. क्योंकि कंपनी एसेट फिर भी बहुत सेफ गार्ड है, फिर भी उसमें बहुत सारे सिक्योरिटी मेजर्स हैं, बट आपका जो पर्सनल कंप्यूटर है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है या मोबाइल है, उसमें कोई भी ऐसा सेफ गार्ड नहीं है. सो प्लीज बी विजिलेंट एंड लुक आउट दोज ऑल स्टफ. ठीक है. So I'm going to share this slide and based on that you can carry forward and let me know if you have any doubts. Okay. So that's all from my side, guys. Like if you have any question or feedback, please let me please share with me and then we can wrap up this session. किसी को कुछ पूछना है तो सर से पूछ सकते हो. श्वेता, Yes, ma'am. ये सेशन ना सिर्फ एक पहल या फीमेल का ही नहीं, ये मेल पर्सन के लिए भी होना चाहिए. बहुत अच्छा सेशन था. हम सर ने एक्चुअली ये सारे लोगों को के लिए ये हमने सारे को लिंक शेयर किया, वन में भी एंड प्लांट ऑल्सो. नहीं, हम लोग को ये इन्फॉर्मेशन नहीं था, बट ये ट्रेनिंग नो डाउट बहुत अच्छा था. और तो क्या हम लोग एक बार दोबारा शेड्यूल, मतलब इस मंथ नहीं बोल रहे, नेक्स्ट कोई मंथ में अगर दोबारा शेड्यूल करें, और जिसमें Okay. हमको ये पता नहीं था कि ये सब कोई कर सकते हैं. हम लोग खाली फीमेल में ही कन्वे हुआ था. ठीक है मैम. अच्छा ओके, हम ट्रेनिंग शेयर करेंगे अगर ऐसे कुछ प्लान करेंगे. बाकी ट्रेनिंग बहुत अच्छा था. Okay.
Thank you, sir. Thank you so much. It was a great training. Like we are taking a lot of things from today's session, and we have learned a lot of things that which we can deal in our day-to-day life to protect ourselves from all the hacking that are going in our society or in our community in our days. So thank you so much. Thank you everyone, and I will share this slide. So please have a read on it. Okay. Thank you. Have a good day. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Bye. sir.